let's start. Very good evening. I welcome all of you on behalf of our Tusa Road CP Study Circle on today's on various critical issues on GST. List is already circulated and everybody have. On this subject, we have our CA Pitam Goyal ji and CA Tushar Agrawal ji. Both are very learned speaker, though they are doesn't need any introduction, but he both are very first time in our study circle. So this is my duty to introduce him very briefly. CA Pitam Goyal ji is BCom honors, chartered accountant, registered valuer under IBBI, diploma in DISA, forensic and AS. His area of expertise: GST advisory, compliance and audit, business valuation, compliance and advisory, due diligence and business advisory. He has more than 10 years of professional experience in the field of indirect tax and valuation. He is also a founder of Messrs. BPTP and Company Chartered Accountant. He was earlier associated with leading power generation company Renew Power Private Limited and Lanco Infratech Limited. He is a member of ICI, having held All India merit position at all stages. He specializes in structuring business operation, GST advisory, GST department audit, and advisory support in the field of indirect tax. He has been deeply involved with various industries ranging from real estate, BPO, manufacturing, EPC, hospitality, etc. for ensuring proper indirect related compliances and tax related structuring. He has many research paper and articles in reputed national and international journal to his credit. Welcome, sir. Welcome. Thank you, sir, for the nice introduction, sir. Thank you, sir. And now I briefly introduce our another speaker, CA Tushar Agrawal ji. CA Tushar Agrawal ji is BCom honors, chartered accountant, and his areas of expertise: GST advisory, compliance and audit, GST litigation, due diligence and compliance review. Tushar ji has also more than 10 years of experience in indirect tax. He has worked for more than 8 years with Lakshmi Kumaran and Sridharan Attorney, that is the leading law firm of India. He was also deployed by Goods and Service Tax Network for GST implementation, has worked closely with government officials. He has worked extensively with the Government of India GST in designing of GST return, audit and other formats. He is a member of ICI, having held all India merit position at all stages. He specializes in advising clients on in complex indirect tax issue, structuring business operation, identifying and advising on tax efficient business models, contract review, cross border structuring, as well as structuring of business transfer, joint venture and foreign investments. He has also been involved extensively in conducting tax compliance review, GST audit. He has been involved deeply with real estate, hospitality, aviation, infrastructure sector, manufacturing, etc. for optimizing their operation in tax optimal manner and ensuring proper compliances over a last decade. He has been an active speaker at various national and international seminars, workshops and conferences organized on indirect taxation. He also has many research papers and articles in reputed national and international journal to his credit. This is the brief profile of our another speaker, CA Tushar Agrawal ji. I welcome both of you, sir. I also welcome Sunil Dhamija ji, Rajiv Kohli ji, Jagjit ji, and Raman Khatuwala ji, and all the attendees. And with this, sir, I hand over to Pitam ji, sir. Yep. Thank Please, you, sir. Thank you. So, very good evening to all the participants. I hope all the participants are staying at home and staying safe. Over to Tushar. Tushar is just sharing the screen. I'm just sharing the screen.
Is my screen visible? Yes, yes, sir, visible, very visible. At the outset, I would like to thank you, Rajesh ji, Sunil ji, and all the official bearers for giving us this opportunity. Good evening to all the participants. I hope you are doing well and taking care of your health. Friends, we are almost about to reach 4 years of GST implementation. 1st July 2021, we will complete 4 years of GST. In last 4 years, we have witnessed hundreds of amendments, notifications, judgments, circulars, advance ruling. The GST law is booming, maturing, and still in development stage. In fact, in last 1 year, we have seen the department has also become active. We have witnessed various notices being issued by the department. We are aware that the DGGI has become very active and scrutinizing the cases very actively. So in this particular webinar, what we have done, we have taken out 10, 12 major issues which have been a subject matter of discussion at various platforms, among professionals, amongst taxpayers. So what we will do is that we will discuss each of such critical issue, and then we will also see the possible solution to that issue and what we as a chartered accountant should advise to our clients कि ultimately इन सारे issues में हम अपने clients को ground level पे क्या advice दें और क्या implement करवाएं. So we will start with our first legal issue, how to handle the departmental notices for difference between GSTR 2A and 3B. Friends, we are aware कि हर किसी को, हर हमारे clients को किसी न किसी level पे इस type के notices receive हो रहे हैं. कुछ jurisdiction से notices receive होते हैं जहां वो बोलते हैं हमारे 2A और 3B में mismatch है, तो mismatch पे reversal का reason दो, नहीं तो reversal amount जमा करा जाए. कुछ notices DGGI issue कर रहा है. DGGI has also become active और and both 2A 3B के differences के ऊपर भी काफी investigations कर रहा है. तो इन सभी notices को हम किस तरीके से deal करें, तो हम अपनी पूरी discussion को 3 period में divide करते हैं. पहला period from 1st of July 2017, जब से GST implement हुआ, till 8th of October 2019. Why this date is selected? क्योंकि 9th अक्टूबर से एक नया रूल इंसर्ट हुआ था GST लॉ में, रूल 36(4), जो कहता था कि अगर आपका क्रेडिट 3 में भी ज्यादा है और 2A में कम है, तो मैक्सिमम क्रेडिट जो आप ले सकते हो दैट इज 120% ऑफ व्हाट इज कमिंग इन 2A. तो 2A प्लस 20% मैक्सिमम इतना क्रेडिट ले सकते हो, और आज उसकी लिमिट 105% है, तो मैक्सिमम क्रेडिट में 2A प्लस 5% ले सकता हूँ. तो एक पीरियड मेरा उस रूल से इंसर्ट करने से पहले हो गया. दूसरा पीरियड मेरा जब वो रूल इंसर्ट हुआ दैट इज 9 अक्टूबर 2019 टिल रीसेंट बजट 2021 अमेंडमेंट. ये अमेंडमेंट क्या है कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. ये हमारा दूसरा पीरियड हो गया जब रूल 36(4) इंसर्ट हुआ था, जहां मेरा क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था 120% जो अभी 105% है, टिल दिस बजट 2021 अमेंडमेंट बिकम्स इफेक्टिव. अभी तक ये अमेंडमेंट इफेक्टिव नहीं है, इस अमेंडमेंट के डिस्कशन हम करेंगे. और थर्ड पीरियड हो गया जो इस अमेंडमेंट के बाद मुझे किस तरीके से अप्रोच करना है. तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पीरियड के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, 1/7/2017 टिल 8 अक्टूबर 2019. जब हम रिकंसिलिएशन करते हैं अपना 2A 3B, तो हमें अलग अलग टाइप के वेंडर्स मिलते हैं और अलग अलग टाइप की सिचुएशंस मिलती हैं. तो इन वेंडर्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट कैटेगरी वो वेंडर्स जिसने अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं करी, ना GSTR 1 फाइल करी, ना GSTR 3B फाइल कर रखी. सो वी आर नॉट अवेयर उन्होंने क्या किया. मेरे पोर्टल में ना GSTR 2 में आ रहा है, ना ही वेंडर मुझे बता रहा है कि उसने एक्चुअल में टैक्स पे किया है, क्या किया है. सो वन कैटेगरी ऑफ वेंडर दैट इज वेंडर B इज वेयर GSTR 3B हैज नॉट बीन फाइल्ड. सेकंड कैटेगरी ऑफ वेंडर इज जो वेंडर बोल रहे हैं सर हमने टैक्स तो 3B में पे कर दिया है, बट हमसे GSTR 1 फाइल करते हुए कोई गलती हो गई थी. मैंने GSTR 1 फाइल करते हुए गलती से B2B की जगह B2C में शो कर दिया था, गलती से मैंने गलत GST नंबर रिकॉर्ड कर दिया था. तो इस टाइप की कुछ क्लरिकल या प्रोसीजरल मिस्टेक होगी जिसकी वजह से मैं GSTR 1 में प्रॉपर्ली अपलोड नहीं कर पाया और आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा. बट आई हैव एक्चुअली फाइल्ड माय 3B और 3B के अंदर उस टर्नओवर के ऊपर मैंने टैक्स सरकार को जमा कर दिया है. तो ये 2 कैटेगरी ऑफ वेंडर्स हो गए. जब भी हम रिकंसिलिएशंस करते हैं, कोई भी हमें नोटिस मिलता है, नोटिस के अंदर वो रिकंसिलिएशन डिफरेंसेस पूछते हैं, तो हम जब रिकंसिलिएशन अपना इनहाउस करेंगे, अपना 2A 3B को मैच करेंगे, तो हम अपने वेंडर को इन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. और दोनों कैटेगरी में अब हम देखते हैं कि क्या क्या लीगल आर्गुमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं ये बोलने के लिए कि हमें ITC रिवर्सल करना क्यों नहीं है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लीगल आर्गुमेंट डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या क्या लीगल आर्गुमेंट्स अवेलेबल है नोटिस में लिखने के लिए. फिर हमें प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे क्या करना है,
वो हम एंड में कंक्लूजन करते हुए डिस्कस करेंगे। तो जब मैं कैटेगरी 1 की बात करता हूँ, वेंडर ए की बात करता हूँ कि जिन्होंने 3B में टैक्स पे कर दिया है बट किसी कारणवश जीएसटीआर 2 में मेरे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने जीएसटीआर 1 में मिस्टेक कर दिया है। जीएसटीआर 1 इज जस्ट अ फाइलिंग स्टेटमेंट आउटवर्ड सप्लाईज की। तो उस केसेस में जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमें वेंडर से एक अंडरटेकिंग या एफिडेविट लेना चाहिए जहां वो क्लियर कट स्पेसिफाई करे कि उन्होंने ये इनवॉइसेस हमें इशू कर रखे हैं और इन इनवॉइसेस के अगेंस्ट उसने 3B के अंदर टैक्स पे कर दिया है, सरकार को टैक्स मिल चुका है, बट उसने जीएसटीआर 1 में ये गलती कर दी थी और इस गलती की वजह से 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो इस टाइप के एफिडेविट्स अगर हम अपने वेंडर से लेते हैं तो उन एफिडेविट्स के बेसिस पे जो नोटिस मेरे को रिसीव हुआ है, उस नोटिस में इन कैटेगरी ऑफ वेंडर्स में जो डिफरेंस आया है, हम क्लियर कट लिख सकते हैं कि ये सारे वो वेंडर्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में अपनी 3B फाइल कर रखी है, सरकार को टैक्स पे कर रखा है और किसी कारणवश जीएसटीआर 1 में गलती कर दी जिससे 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। ये उनके अंडरटेकिंग है, ये उनके एफिडेविट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि उन्होंने 3B में टैक्स पे कर दिया है और उनके बेसिस पे हम अपना रिप्लाई बना सकते हैं कि इट इज ओनली अ प्रोसीजरल मिस्टेक। Time and again, Supreme Court in India, High Courts of India, and tribunals and sisters at various level has held कि procedural lapses के वजह से आपका कोई substantive benefit deny नहीं हो सकता. Like the Supreme Court in Mangalore said, there can be various conditions attached. Some of these conditions may be substantive and mandatory and based on consideration of policy, and some of these conditions may be procedural. आप दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते जो प्रोसीजरल कंडीशन है। तो हमने यहाँ कहीं ना कहीं अपनी सब्सटेंशिएटिव कंडीशन फुलफिल कर दी है क्योंकि वेंडर ने एक्चुअल में सरकार को टैक्स पे कर दिया है, सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो इन कैटेगरी ऑफ वेंडर्स के लिए हमें रिवर्सल करने की कोई जरूरत नहीं है, उनसे हमें एफिडेविट लेना चाहिए, अंडरटेकिंग लेनी चाहिए और वही हमें अपनी नोटिस में रिप्लाई के तौर पर फाइल करनी चाहिए। अब हम दूसरे कैटेगरी ऑफ वेंडर्स डिस्कस करते हैं जिन्होंने ना जीएसटीआर 1 भरी, ना 3B भरी, ना सरकार को पैसा पे किया। उस कैटेगरी ऑफ वेंडर्स के लिए हम क्या करें? मैंने क्रेडिट ले रखा है, मेरे पास वैलिड इनवॉइस है, मैंने वेंडर को पेमेंट कर रखी है, मैंने अपनी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रखी है। गलती सप्लायर के एंड पे है, उसने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर रखा, उसने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर रखा। तो उस सिचुएशन में जब मुझे नोटिस रिसीव होता है तो मैं क्या क्या ग्राउंड्स ले सकता हूँ लड़ने के लिए? लेट अस डिस्कस दैट। तो वी विल डिस्कस ग्राउंड नंबर 1। सबसे पहला ग्राउंड और सबसे मेजर ग्राउंड जो हम इन नोटिस में लेते हैं और हमें लेना चाहिए, अगर हम कंडीशन देखें सेक्शन 16 के अंदर मल्टीपल कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड है, तो रेलेवेंट कंडीशन हमारी केस स्टडी के लिए है वो है सेक्शन 16(2)(c) के अंदर जो बोलता है कि सप्लायर को टैक्स की पेमेंट करनी चाहिए। लेट अस रीड दिस कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 16(2)(c) says subject to the provision of section 41 and 43A, the tax charge in respect of such supply has been actually paid to the government either in cash or through utilization of ITC admissible in respect of such supply। तो ये जो सेक्शन स्टार्ट होता है कैसे स्टार्ट होता है? इट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 एंड 43A। तो सबसे पहले मुझे 41 एंड 43A को कंप्लाई करना है, तब ये कंडीशन मेरे लिए एप्लीकेबल होगी। तो हम ये देखते हैं कि सेक्शन 41 एंड 43A क्या कहते हैं। जब हम सेक्शन 41 में जाते हैं, सेक्शन 41 बोलता है कि हमें जो भी क्रेडिट मिलता है वो प्रोविजनली मिलता है और फाइनल क्रेडिट मुझे मैचिंग के बाद मिलेगा एज पर सेक्शन 42। जब हम सेक्शन 42 और उसके रूल्स हैं, रूल 69 एंड 71, इन सबको क्यूमुलेटिवली पढ़ते हैं तो उन्होंने ना एक प्रिस्क्राइब्ड मैचिंग प्रिंसिपल्स के प्रोविजंस बना रखे हैं और इन प्रोविजंस में ये लिखा हुआ है कि सप्लायर अपनी इनवॉइसेस अपलोड करेगा जीएसटीआर 1 में, ये सप्लाईज ऑटो पॉपुलेट होंगी, रिसिपेंट एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग जैसे एक्शंस लेगा, रिसिपेंट अपने आप में नई इनवॉइसेस डाल सकता है, ऑटो पॉपुलेट कर सकता है जो फिर से रिफ्लेक्ट होंगी सप्लायर को। अगर कोई मिसमैच है तो उस मिसमैच की रिपोर्ट MIS 1 में दी जाएगी, MIS 2 फॉर्म में दी जाएगी, इसके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। तो जिस तरीके से हमारा सेक्शन ड्राफ्टेड है, सेक्शन 42 रेड विद रूल 69 71, ये सारे प्रोविजंस मैचिंग प्रिंसिपल्स उस टाइम ड्राफ्ट हुए थे जब गवर्नमेंट ने कॉन्टेम्पलेट किया था कि जीएसटीआर 1, 2, 3 ये तीनों की तीनों रिटर्न्स चलेंगी। बट वी आर अवेयर फ्रेंड्स कि जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 गवर्नमेंट ने अबेंस में कर दिया है। आज की तारीख में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है जीएसटीआर 1 जो मेरे आउटवर्ड रिटर्न्स है, जीएसटीआर 3B जिसके बेसिस पे मैं टैक्स पे कर सकता हूँ, कंसोलिडेटेड 1 और 2 पेजर फॉर्म है। देन वी हैव जीएसटीआर 2A एंड 2B जो सिर्फ एक रिपोर्ट है कि मेरे सप्लायर ने कहाँ टैक्स पे किया है। जबकि हम सेक्शन 42 रेड विद रूल 69 या 71 पढ़ते हैं, इसमें जो प्रोसीजर डिटरमाइंड है कि आपको जीएसटीआर 2 में क्या चेंजेस करने हैं, 3 में क्या करने हैं, MIS 1 में रिपोर्ट आएगी, MIS 2 में रिपोर्ट आएगी, ये सारा प्रोसीजर अबेंस में आज की तारीख में दिस सेक्शन एंड रेड विद रूल्स इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट ग्राउंड लेवल बाय द जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल में आपको कोई MIS 1 नहीं दिखेगी, कोई MIS 2 नहीं दिखेगा।
कोई GSTR 2 नहीं देखेगी, कोई GSTR 3 नहीं देखेगी। इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारा प्रोसेस ही अबेंस में गवर्नमेंट ने कर दिया है बिकॉज ऑफ द GST ग्लिचेस। तो सेक्शन 41 कैनॉट बी इम्प्लीमेंटेड। Once section 41 cannot be implemented, how this, then the entire section 16(2)(c) has to be kept in abeyance till section 41 is actually implemented on portal. Similarly, section 43 government ने recently introduce किया था, जिसमें इसने joint and several liability and matching principles के concepts को और redefine किया था, and ये भी अभी तक implement नहीं हुआ है, इसको अभी तक notify नहीं किया गया है। तो अगर section 16(2)(c) की बात करें तो सबसे पहला ground हमें ये लेना चाहिए this is subject to provision of section 41, 43A। ये दोनों सेक्शन अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। 43A तो नोटिफाई नहीं हुआ, और 41 जो है वो टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से GSTR 2, 3, MIS1, MIS2 ये सारी रिपोर्ट्स अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई हैं। क्योंकि यही सेक्शन इंप्लीमेंट नहीं हुए तो सेक्शन 16(2)(c) अपने आप में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। Hence, this condition is not implementable as of now। इसलिए मुझे GST रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। Ground number 2, a very relevant ground, that this section 16(2) per se is arbitrary, क्योंकि ये बोनाफाइड टैक्सपेयर और टैक्स इवेडर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। In fact, I will like to draw your attention towards a very important judgment of Punjab and Haryana High Court in the case of Gheru Lal Balchand। इसमें कोर्ट ने बहुत डिटेल में डिस्कस करते हुए, इट्स अ केस ऑफ प्री GST रिजीम, बट वहां पर भी सिमिलर कंडीशंस थी और उन्होंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया केस को, एंड अल्टीमेटली दे हैड दैट कि आप लाइबिलिटी उन बायर पे नहीं दे सकते जो बायर बोनाफाइड है। हाउएवर, अगर इफ देयर इज अ प्रूफ कि बायर ने मिलके कोल्यूट किया है सप्लायर के साथ, मिलके टैक्स अवेट किया है, देन दैट इज अ डिफरेंट केस। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ बोनाफाइड बायर, देन आप लाइबिलिटी उसके ऊपर आप फासन नहीं कर सकते फॉर द फॉल्ट ऑफ सप्लायर। तो हमारे प्री GST रिजीम में बहुत सारी जजमेंट्स हैं जहां उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है बोनाफाइड रिसिपिएंट vis-a-vis a tax evader, a receiver who is a tax evader who has collaborated with the supplier and done some planning. So second ground which we should take is we are a bona fide taxpayer। हम बोनाफाइड टैक्सपेयर हैं, हमने सारी कंडीशंस ITC की सेटिस्फाई कर रखी है जो क्रेडिट लेने की है। अब सप्लायर ने पे नहीं किया तो आप मेरे ऊपर टैक्स लायबिलिटी फासन नहीं कर सकते। थर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन। देयर इज अ प्रोपोजिशन, लीगल मैक्सिमम। इट सेज द लॉ कैन नॉट कंपेल द डूइंग ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज। I cannot do something which is totally impossible. How can I ensure that he has paid the tax to the government? How can I ensure that he is depositing tax to the government? Even in fact, friends, if you recall, GSTR 2A भी जो हमें दिखना स्टार्ट हुआ वो अक्टूबर 2018 से स्टार्ट हुआ। अक्टूबर 2018 से हमें 2A देखना स्टार्ट हुआ। उससे पहले तो हमें यही नहीं पता चल रहा था कि सप्लायर ने GSTR 1 फाइल करा नहीं करा, 3 फाइल करी नहीं करी, मेरे पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं था। और GSTR 2 जो दिखना स्टार्ट हुआ उसमें हमें सिर्फ इतना पता चला कि GSTR 1 उसने फाइल करी नहीं करी। रिसेंटली लास्ट कपल ऑफ मंथ्स पहले ही हमें ये पता चल रहा है कि उसने 3B भी फाइल करी नहीं करी, वो इन्फॉर्मेशन भी अब 2A में आ रही है। तो लॉ कैन नॉट टेल मी टू डू समथिंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम नॉट अवेयर उसने फाइल करा है नहीं करा, मैं कैसे इंश्योर करूं कि वो टैक्स पे कर दे। So that's a major ground which we can take। A third ground, fourth is the press release, the recent press, the 2018 press release, wherein they specifically said that it's GSTR 2 is only a facility to review, and you don't have to actually undertake a complete exercise of reconciliation, etc. There is a complete press release which says it's only a facility which has been given to you. Apprehension that ITC can be availed only on the basis of reconciliation between 2A and 3B before the due date of filing of 3B is unfounded, as the same exercise can be done later। तो गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज खुद ही बोल रही है कि आप अपना क्रेडिट अपनी बुक्स के हिसाब से ले सकते हो। And then last ground is the recent very important Madras High Court judgment। मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट में, इस पर्टिकुलर जजमेंट में क्या बोला गया कि एक सेलर था, सेलर ने सप्लाई करी बायर्स को रबर शीट्स, अथॉरिटीज ने सेलर के यहाँ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी, जहां उसको पता चला कि सेलर ने अभी तक टैक्स पे नहीं कर रखा है। तो उन्हीं अथॉरिटीज ने क्या किया, क्योंकि बायर भी सेम ज्यूरिसडिक्शन में थे, तो उन्होंने बायर के यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, एंड देन दे इशूड नोटिस टू द बायर फॉर रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। देन द पेटिशनर वेंट टू द हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट हेल्ड दैट कि आप डायरेक्टली पेटिशनर या रिसिपिएंट से क्रेडिट रिवर्स मांग रहे हो, सबसे पहले आप सेलर से तो टैक्स कलेक्ट करो। तो कोर्ट ने खुद बोला कि भाई आप सेलर के पास गए थे, वहां पर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी थी, तो आप पहले उनसे टैक्स कलेक्ट करो, आप स्ट्रेट अवे बायर के पास क्यों आ रहे हो ITC रिवर्सल बोलने के लिए।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है कि भाई अगर मेरे साइलर ने टैक्स पे नहीं किया है तो सबसे पहले आप सेलर के अगेंस्ट, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको नोटिस भेजो, उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो बेस्ड ऑन द डेटा विच आई हैव गिवन टू यू। अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है कि मैंने इन इनवॉइसेस का क्रेडिट लिया है लेकिन सप्लायर ने टैक्स पे नहीं कर रखी है, तो आप सप्लायर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन पहले स्टार्ट करो, उसके बाद मेरे पास आओ। आप डायरेक्टली मेरे पास क्यों आ रहे हो? So that's a fifth ground relying upon this Madras High Court judgment. We can always say that you have to investigate the supplier first. So these are some of the grounds which we can actually take to fight for all the cases wherein 2 and 3B notices have been issued for the period 1/7/2017 till 8th October 2019. Friends, इसमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो हम अपने क्लाइंट को एडवाइस करते हैं वो ये करते हैं कि जब इस टाइप की नोटिस आते हैं ना ज्यूरिसडिक्शन से या डीजीजीआई से या डिपार्टमेंटल ऑडिट के दौरान जब ये मुद्दे उठते हैं, तो उस केसेस में होता क्या है, डिपार्टमेंटल ऑफिसर इन ग्राउंड्स को ग्राउंड लेवल पे मानते नहीं है। तो हम जितने भी हमने ग्राउंड डिस्कस करें, जो हम नोटिस का रिप्लाई में लिख भी देंगे, ये ग्राउंड लेवल पे नहीं मानेंगे। इन बेसिस पे हमें रिलीफ या तो ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट लेवल पे मिलेगा। तो ग्राउंड लेवल पे क्या किया जाए? तो हमारी अप्रोच क्या रहती है, हमने अपने क्लाइंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक क्लाइंट जिसका क्वांटम रीजनेबल है विज़-अ-विज़, जिसका आईटीसी रिवर्सल का 2 3B मिसमैच का क्वांटम रीजनेबल है विज़-अ-विज़ हिज बिजनेस साइज, उस केसेस में वी एडवाइज आवर क्लाइंट टू फाइट द केस, नॉट डिपॉजिट एनीथिंग एंड गिव अ प्रॉपर लीगल रिप्लाई। सेकंड सिचुएशन वहां आती है जहां अमाउंट छोटे छोटे होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में मेरा डिपो है, वहां पर अमाउंट सिर्फ 40,000 रुपए का रिवर्सल का आ रहा है, किसी स्टेट में 60,000 रुपए है, किसी स्टेट में 1 लाख रुपए है। एकदम ऐसा अमाउंट होता है जो बहुत सब्सटेंशियल नहीं होता विज़-अ-विज़ द साइज ऑफ द कंपनी, और उस केस में लड़ने में कहीं ना कहीं मेरी लिटिगेशन कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी विज़-अ-विज़ द टैक्स डिस्प्यूट अमाउंट। तो उस सिचुएशन में हमारा एडवाइस रहता है कि जो हमें नोटिस मिलता है, हम नोटिस में ये सारे ग्राउंड्स दें और एंड में हम बोले कि भाई हमारे हिसाब से रिवर्सल नहीं बनता, बट टू बाय पीस ऑफ माइंड वी आर रिवर्सिंग अंडर प्रोटेस्ट। हम अंडर प्रोटेस्ट रिवर्स करें विद द राइट टू रिक्लेम द सेम लेटर ऑन। तो जो ये रिक्लेम वाली बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अंडर प्रोटेस्ट रिवर्स करते हैं तो कल को कुछ फेवरेबल जजमेंट इस मुद्दे पे आते हैं, बिकॉज वी ऑल आर अवेयर कि इस मुद्दे पर मल्टीपल लोग हाई कोर्ट गए हुए हैं और अगले 1-1.5 साल में हम बहुत सारी जजमेंट्स इस मुद्दे पे देखेंगे। अगर फेवरेबल जजमेंट्स टैक्स पेयर्स के एंगल से आती है एंड हाई कोर्ट कोई एक जनरल जजमेंट इशू कर देते हैं जिसमें इस सेक्शन को ही उड़ा दिया जाता है, तो उन सिचुएशन में हम वो सारे क्रेडिट रिक्लेम कर सकते हैं। एंड प्लीज नोट, रिक्लेम करते हुए कभी भी आपकी टाइम लिमिट नहीं लगती। जो जीएसटी लॉ में टाइम लिमिट है कि हमें क्रेडिट सितंबर तक लेना है फाइनेंशियल ईयर के एंड से, वो फर्स्ट टाइम क्रेडिट पे लगती है। रिक्लेम पे कभी भी वो टाइम लिमिट नहीं लगती है। इसका रीजन ये है कि ये टाइम लिमिट वाली जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये पहले भी एक्साइज लॉ में हुआ करती थी 57G के अंदर कि 6 महीने में क्रेडिट लेना है, 1 साल में क्रेडिट लेना है। उस टाइम कई सारी जजमेंट्स हैं। There is a Calcutta High Court of Rahi Industries, there is Orlando Firmo, there is a government circular of 2014 सैंडविच क्रेडिट रूल्स के अंदर, जहां उन्होंने खुद बोल रखा है कि ये टाइम लिमिट हमेशा फर्स्ट टाइम क्रेडिट पे लगेगी, कभी भी रिक्लेम ऑफ क्रेडिट पे नहीं लगेगी। और उसका रीजन ये दे रखा है कि जब आप रिक्लेम करते हो, रिवर्स करने के बाद दोबारा रिक्लेम करते हो, तो आप रिवर्सल को नलिफाई कर रहे हो, कोई क्रेडिट नहीं अवेल कर रहे हो, आप रिवर्सल को नलिफाई कर रहे हो। तो इन केसेस में छोटे क्लाइंट्स छोटे अमाउंट में हम अंडर प्रोटेस्ट रिवर्स करा सकते हैं, एंड बड़े अमाउंट जहां इन्वॉल्व है वहां पर हम इन ग्राउंड्स के बेसिस पे लड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद हम दूसरे पीरियड पे आते हैं 9 अक्टूबर 2019 से लेकर जब तक बजट 2021 की अमेंडमेंट इफेक्टिव हुई है। 9 अक्टूबर को रूल 36(4) इंप्लीमेंट हो गया इंडिया में, जिसने बोला कि आप मैक्सिमम क्रेडिट उतना ही ले सकते हो जितना 2A में आ रहा है प्लस 20%, जो अब 5% है। तो हम अपनी केस स्टडी नंबर 3 में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि रूल 36(4) के लिए हमें एडिशनल ग्राउंड्स और क्या लेने हैं फाइट करने के लिए। और जो प्रीवियस ग्राउंड्स हमने पहले पीरियड के लिए डिस्कस करे हैं वो सारे रेलेवेंट रहेंगे इस पीरियड में भी। तो अभी हमने 4-5 ग्राउंड्स जो डिस्कस कर रखे हैं वो सारे ग्राउंड्स इस पीरियड में भी रेलेवेंट रहेंगे, प्लस हमें 1-2 एडिशनल ग्राउंड्स लेने पड़ेंगे जो हमें रूल 36(4) को चैलेंज करना पड़ेगा। तो उन ग्राउंड्स के बेसिस पे हम अपना रिप्लाई दे सकते हैं कि हमें क्रेडिट रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है, और ये ग्राउंड्स हम अभी अपनी केस स्टडी नंबर 3 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन शॉर्ट, अगर मैं अभी तक की बात करूं 1/7/2017 से टिल डेट, you have all the grounds legally to fight that there is no need of reversal of credit because there is no provision, the provision is arbitrary, it does not make distinction between a bona fide buyer and a genuine buyer, and it cannot be implemented. The provision is subject to section 41, 43A, which itself is not implemented, तो 16(2C) इंडिया में आज की तारीख में applicable ही नहीं है। इस grounds के basis पे good case to fight, but we are not suggesting that we don't do reconciliations. हमें reconciliations रेगुलरली करनी है, रेगुलरली फॉलो अप करना है। ये सब उन्हीं केसेस के लिए है कि जिन केसेस में ऑलरेडी एक डिफॉल्ट हो चुका है एंड वी हैव टू लीगली फाइट। फ्रेंड्स, इस बजट में जो अमेंडमेंट हुई है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अमेंडमेंट अभी इफेक्टिव नहीं हुई है। ये बजट की कोई भी अमेंडमेंट इफेक्टिव कब होती है? जब सेंटर
बिल पास कर देता है जो ऑलरेडी कर चुका है। उसके बाद सारे स्टेट्स को करना पड़ता है ऑल ओवर इंडिया। जब सारी स्टेट्स ये बिल को अपनी स्टेट लेजिस्लेचर में पास कर देगी और गवर्नमेंट एक डेट नोटिफाई करेगी, तब जाके ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट इफेक्टिव होगी। और ये अमेंडमेंट है क्या, हम डिस्कस करते हैं। इस अमेंडमेंट में क्लियर कट उन्होंने कह दिया है, उन्होंने कंडीशन जो सेक्शन 16 के अंदर प्रिस्क्राइब कर रखी हैं, इन सेक्शन 16 की कंडीशंस में क्लियरली ये कंडीशन ऐड कर दिया है कि रिसिपेंट को क्रेडिट तभी मिलेगा जब सप्लायर अपना इनवॉइस जीएसटीआर 1 में अपलोड कर दे, जो मुझको रिसिपेंट को रिफ्लेक्ट करे जीएसटीआर 2A 2B में के अंदर। तो इन्होंने स्पेसिफिकली लॉ के अंदर ही अब स्पेसिफिकली डाल दिया कंडीशन कि सप्लायर को जीएसटीआर 1 में ये इनवॉइस रिफ्लेक्ट करना जरूरी है, जो मुझे ऑनलाइन पोर्टल में कम्युनिकेट होगा इन जीएसटीआर 2A और 2B फॉर्म। तो अब ये जैसी ही कंडीशन इफेक्टिव हो जाएगी, तो जितने भी ग्राउंड्स हमने पहले लिए हैं, कहीं ना कहीं वो सारे ग्राउंड्स वीक पड़ जाएंगे, हम ले नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटेंशन है, दे आर वेरी क्लियर, दे आर टेकिंग दिस रिकंसिलिएशन वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव टू इंश्योर कि हम अपने सारे क्लाइंटों का रेगुलर रिकंसिलिएशन कराएं और पास पीरियड के लिए उन ग्राउंड्स के बेसिस पे हम फाइट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो जीएसटी एजेंडा था इस अमेंडमेंट का, उसने क्लियरली बोला the purpose of this amendment, it will be logical to complete this linkage of output supplies declared by the supplier with the tax liability by also limiting the credit availed in 3B to that reflected in GSTR 2A of the recipient। तो एजेंडा की मीटिंग में क्लियर कट बोला गया था कि रिसिपिएंट का हमारा जो इंटेंट है कि रिसिपिएंट उतना ही क्रेडिट ले जितना 2A में अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए ये अमेंडमेंट प्रपोज करी गई है। Now let us move to our second case study. Friends, another condition for availing ITC in GST law is that I have to make payment within 180 days from the date of issue of invoice to the supplier. सप्लायर को मुझे 180 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। अगर मैं सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो मुझे अपना आईटीसी का जो अमाउंट है उसको पे करना है अलोंग विद इंटरेस्ट। सेक्शन 16(2) ये बोलता है। अब इसमें हमारा पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ कोविड रीजंस कई बार क्या होता है, सप्लायर और रिसिपिएंट आपस में एग्री कर लेते हैं कि हम जो पेमेंट करेंगे दैट विल स्ट्रेच टू 1 ईयर, कि मैं 25% फर्स्ट क्वार्टर में पेमेंट करूंगा। से मैंने कोई गुड सप्लाई करे हैं 1 CR के, मेरे रिसिपिएंट ने मुझसे एग्री कर लिया है कि भाई इसकी जो पेमेंट है फर्स्ट क्वार्टर के एंड में 25%, सेकंड क्वार्टर के एंड में 25%, थर्ड क्वार्टर के एंड में 25% एंड रिमेनिंग एट द एंड ऑफ फोर्थ क्वार्टर 1 ईयर में स्प्रेड है। अब ये जो पेमेंट जो 1 ईयर में स्प्रेड करी गई है, जिसमें से 180 दिन के अंदर तो मेरे को सिर्फ 50% पेमेंट आई है, रिमेनिंग 50% पेमेंट जो मुझे 180 दिन के अंदर नहीं आई, क्या मुझे इसमें आईटीसी रिवर्सल करना है इस सेक्शन के अंदर इस कंडीशन की वजह से? फ्रेंड्स, इफ यू सी दिस कंडीशन स्टार्ट्स विद अ क्लॉज वेयर अ रिसिपिएंट फेल्स टू पे टू द सप्लायर। तो उसमें वर्ड क्या लिखा है? वेयर अ रिसिपिएंट फेल्स टू पे। तो वर्ड यूज है फेल्स टू पे। जब हम फेल्स टू पे की बात करते हैं तो ये जो टर्म है फेल्स टू पे, जो ये फ्रेज है फेल्स टू पे, ये टाइम एंड अगेन वेरियस जूरिस्प्रूडेंस में एनालाइज हुआ है व्हाट यू मीन बाय फेल्स टू पे। Courts have held, including the very important judgment of Malaysian Airline, have held that fails to pay can occur only when there was an obligation to pay within that period. The failure तभी हो सकता है जब आपके पास obligation थी पे करने की। अगर आपके पास obligation ही नहीं थी पे करने की, then that is not a failure. हमारे केस में जो remaining 50% है, there was never an obligation to pay within 180 days. In fact, both the parties had agreed कि हम थर्ड क्वार्टर के एंड में पेमेंट करेंगे या फोर्थ क्वार्टर के एंड में रिमेनिंग पेमेंट करेंगे। तो इस सिचुएशन में इन माय व्यू इट इज अ वेरी गुड केस टू आर्ग्यू दैट दिस क्लॉज विल नॉट बी ट्रिगर्ड अगर हमने कॉन्ट्रैक्चुअली सप्लायर और रिसिपिएंट ने एग्री कर लिया है कि ये रिवर्सल हम या पेमेंट इस टाइम पे इस माइलस्टोन के बेसिस पे करेंगे। हाउएवर एट ग्राउंड लेवल डिपार्टमेंट में नॉट एग्री, और ये सारी जो इंटरप्रिटेशनल इश्यूज हैं सर, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया में ट्रिब्यूनल लेवल, हाई कोर्ट लेवल, सुप्रीम कोर्ट में लेवल पे ही जाके सस्टेन होंगी। ये सारी इंटरप्रिटेशंस ग्राउंड लेवल का आपके कमिश्नर अपील लेवल तक कोई नहीं मानेगा। वो तो बोलेंगे 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी आप रिवर्सल करो। प्रैक्टिकली बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज ने ग्राउंड लेवल पे ये स्टैंड लिया है कि अगर हम दोनों ने म्यूचुअली एग्री कर लिया है देन इट इज नॉट अ फेलियर टू पे एंड दिस क्लॉज विल नॉट बी ट्रिगर्ड। सेकंड केस स्टडी रिलेटेड टू दिस ओनली इज दैट अगर हम इस सेक्शन को ध्यान से देखें सर, इस सेक्शन में क्या लिखा है? अगर आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी तो आपको करना क्या है? An amount equal to input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability along with interest in such manner as may be prescribed. तो इसमें क्या लिख रहा है? आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में हम ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे? एज पर द मैनर प्रिस्क्राइब।
मैनर क्या है? मैनर में उन्होंने स्पेसिफिकली रूल्स बना रखे हैं, रूल 37, जिसमें लिखा गया है कि ये हम आपके आउटपुट लायबिलिटी में ऐड जीएसटीआर 2 के बेसिस पे करेंगे। जो आप जीएसटीआर 2 फॉर्म भरेंगे, अगर हम देखें जीएसटीआर 2 फॉर्म जो हम भरेंगे उसके बेसिस पे ऐड करेंगे। एंड फ्रेंड्स, वी आर अवेयर कि आज की तारीख में जीएसटीआर 2 फॉर्म इंप्लीमेंट ही नहीं है। आज की तारीख में जीएसटीआर 2 फॉर्म इंडिया में अभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ है। तो इनफैक्ट इस कंडीशन को जिस तरीके से उन्होंने ये सेक्शन ड्राफ्ट किया हुआ है, ये सेक्शन में जिस तरीके से उन्होंने लिखा है कि आपके आउटपुट लायबिलिटी में हम ऐड करेंगे अलोंग विद इंटरेस्ट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। एट बेस्ट में क्या कर सकता हूँ, 3B में सिर्फ रिवर्सल कर सकता हूँ। दूसरा, इंटरेस्ट की जब बात कर रखी है तो इसमें सिर्फ इतना लिखा है अलोंग विद इंटरेस्ट। देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ इंडियन कार्बन, जो स्पेसिफिकली बोलती है कि इंटरेस्ट जैसे प्रोविजन सब्सटैंशिएटिव प्रोविजन होते हैं और आपको ये प्रोविजन सेक्शन में डालने चाहिए क्लियर कट। ये बोलते हुए कि इंटरेस्ट लगेगा, कब से कब तक लगेगा, ये दोनों चीजें क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। जबकि अगर हम देखें सेक्शन 2C में, सेक्शन 16(2) के अंदर ये कहीं नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट कब से कब लगेगा, ये उन्होंने रूल में लिखा है। एंड रूल में लिखने का मतलब है इट्स अ केस ऑफ एक्सेस डेलीगेशन। ये सारी चीजें एज पर इंडियन कार्बन जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड एज पर जेके सिंथेटिक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वेरी लैंडमार्क जजमेंट, वो जजमेंट सेज दैट इट इज अ सब्सटैंशिएटिव प्रोविजन। इंटरेस्ट का प्रोविजन हमेशा सेक्शन में होना चाहिए अलोंग विद कब से कब तक लगेगा, किस मैनर में लगेगा, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि सब्सटैंशिएटिव प्रोविजन उन्होंने एक्ट में लिखा हुआ है। जबकि हमारे एक्ट इस तरीके से डिफाइन नहीं है, ये सारी चीजें उन्होंने रूल्स में बताई हुई है। तो बेसिस ऑल दिस डिस्कशन, प्रैक्टिकली व्हाट आई वांट टू से इज दैट इवन जो हमारे नॉर्मल केसेस हैं जहां हमने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर रखी है और अब सप्लायर और रिसिपिएंट ने आपस में एग्री भी नहीं किया हुआ, हमें पेमेंट 30 डेज में ही करनी थी बट 180 दिन तक पेमेंट नहीं करी है, उस केसेस में व्हाट वी आर ग्राउंड लेवल एडवाइजिंग आवर क्लाइंट इज, ठीक है कोई बात नहीं, आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी है, एज पर द लॉ आप क्रेडिट रिवर्स कर दो 3B में, लेकिन आप अभी इंटरेस्ट पे मत करो। आप 3B में क्रेडिट रिवर्स कर दो, फिर जब भी आप पेमेंट करोगे आप क्रेडिट वापस ले लेना, बट आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट का जो प्रोविजन है वो पोरली ड्राफ्टेड है एंड देयर आर हाई चांसेस कि हाई कोर्ट लेवल में वी गेट फेवरेबल ऑर्डर दैट नो इंटरेस्ट इज लेवेबल इन सच सिचुएशंस। एंड इंटरेस्ट के ऊपर कोई इंटरेस्ट तो होता नहीं है, कल को डिपार्टमेंटल ऑडिट होता है, कोई आता है आपसे इंटरेस्ट मांगता है, आज भी आपको वही कंपोनेंट पे करना है इंटरेस्ट का, बाद में भी वही कंपोनेंट पे करना है इंटरेस्ट का। तो ये एक ऐसा अमाउंट है जो आपको सुमोटो पे करने की जरूरत नहीं है, आप अपना क्रेडिट रिवर्स कर दीजिए और जब भी आप पेमेंट करेंगे आप क्रेडिट रीअवेल कर लीजिए, अलग से इंटरेस्ट पे करने की कोई जरूरत नहीं है। This now we will come to our next case study number 3. Over to you, Preetam. Yeah, thank you. Just in continuation of our first case study with regard to reversal of credit pertaining to 2A and 3B reconciliations. अब अगर हम जीएसटी लॉ की आयरनी देखें फ्रेंड्स, आयरनी इज सच 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लॉ स्टार्ट हुआ। 2017 से there was a mechanism prescribed under section 16 which Tushar has explained in case study number 1, wherein there was specific mechanism for reversal and mechanism was specified under section 41, but वो mechanism कभी भी टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से स्टार्ट ही नहीं हुआ, इट वाज केप्ट इन अबेयंस। अगर हम उसके बाद की आयरनी देखें तो फ्रेंड्स अक्टूबर 2018 के अंदर डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस रूल 36(4) विज़ अगर हम बात करें 2A रिकंसिलिएशंस, 2A रिकंसिलिएशंस 2A जो एज अ टैक्स पेयर्स को शो होने लगी, इट स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग ओनली इन अक्टूबर 2018। अक्टूबर 2019 में रूल 36(4) गॉट इम्प्लीमेंटेड। 1 जनवरी 2021 की बात करें फ्रेंड्स, सो व्हाट जीएसटी council has done, they have introduced another form in the name of GSTR 2B. So now there is again GSTR 2B, 2A, rule 36(4) compliance, GSTR 3B and our books. अगर हम 36(4) रूल को देखते हैं फ्रेंड्स, what does this rule 36(4) states? Rule 36(4) states input tax credit to be availed by a registered person in respect of invoice or debit notes, the details of which has not been furnished by the supplier under subsection 1 of section 37 in GSTR form GSTR 1, or using invoice furnishing facilities shall not exceed 5% of the eligible credit available in respect of invoice or debit notes, the details of which has been uploaded by the supplier in GSTR 1. Means
जितना भी इनवॉइस, जो भी इनवॉइस मेरे सप्लायर ने GSTR 1 के थ्रू, R1 के थ्रू फाइल कर दिए हैं, that will be a eligible credit for me as per rule 36(4) with a provisional credit, in addition to that a provisional credit of 5%. जो भी मेरे GSTR 1 मेरे सप्लायर्स ने फाइल कर दी है, pertaining to that amount plus 5% provisional credit will be allowed to me as a ITC, valid ITC as per rule 36(4) for filing my 3B returns. अब हम ये देखते हैं GSTR 1 जो मेरा सप्लायर फाइल करता है, the GSTR 1 filed by my supplier, how does it gets auto populated in my GSTR 2A or 2B, whatever the case may be. Just to understand this, we are taking three examples, three different scenarios. First scenarios, suppose there was an invoice dated 1st January 2021. 1st January 2021 को मेरे सप्लायर ने एक इनवॉइस रेज करा. सप्लायर ने उस इनवॉइस को GSTR 1 फॉर जनवरी के अंदर ही रिपोर्ट कर दिया. मींस जो भी उसने GSTR 1 जनवरी की फाइल करी है, जनवरी के GSTR 1 के अंदर ये इनवॉइस नंबर उसने फर्निश कर दिया है. सब्सिक्वेंटली उसने विद इन टाइम पीरियड, दैट इज 11th of February, next month, 11th February 2021 तक, he has also filed his return. उसने रिपोर्ट भी जनवरी 2021 की रिटर्न में करा है और उसने रिटर्न भी 11th February 2021 तक फाइल कर दिया है. As soon as he files the return for the month of January, the said amount will be auto populated in my GSTR 2A as well as 2B for the month of January itself, friends. अगर हम सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस में क्या करा सप्लायर ने, in the month of January, while furnishing the return for the month of January, he inadvertently missed my invoice. उसने वो इनवॉइस को मिस कर दिया. He forgot to put in my invoice or report my invoice. So after I reminded him, he furnished that invoice or reported that invoice which was dated 1st January 2021 in the month of March. March 21 की रिटर्न के अंदर उसने वो इनवॉइस को रिपोर्ट करा and subsequently he filed his return for the month of March within the due date, within the prescribed time limit, that is 14th of April. March की GSTR 1 11th of April तक he has filed that. Once he files that, the same amount of ITC which he has reported in the month of March pertaining to January invoice will be auto populated in my 2A as well as 2B of March itself. Coming to the third scenario, when we talk about third scenario facts are such कि मेरे सप्लायर ने GSTR 1 फाइल ही नहीं करी है. He has not filed the return at all. मार्च के मंथ में मैंने अपने सप्लायर को बोला प्लीज फाइल योर रिटर्न्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. In the month of March, I am telling him to file the return for the month of January itself. So मेरे सप्लायर ने जो 1st जनवरी का इनवॉइस था, he has reported that in January month itself. He has reported in January, but he has filed by 11th of April 2021. That is, he has delayed it. He has not filed the R1 within stipulated time period. So इस केस में अगर हम देखें तो GSTR 2A एज अ रिसिपिएंट, अगर मैं GSTR 2A अपना ओपन करता हूं, एक्सट्रैक्ट या डाउनलोड करता हूं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, it will be shown or it will be reflected in the month of January itself. But अगर मैं 2B की बात करूं फ्रेंड्स, it will be shown in the month of March itself. So in a case where there is difference in the reporting month as well as filing month, there will be difference in auto population with regard to GSTR 2A as well as 2B. Now important point here to understand here is जो GSTR 2A और 2B के अंदर मेरा
ITC ऑटो पॉपुलेट होता है वो 2 डॉक्यूमेंट से होता है और 2 फाइलिंग से होता है. फर्स्ट इज R1, सेकेंड इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी. अगर मैं R1 की बात करते हैं, R1 हैज टू बी फाइल्ड बिफोर 11th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ. अगर वो 12th को भी फाइल होगा, देन देयर विल बी डिस्क्रिपेंसी इन 2 months रिकंसिलिएशन. अगर 12th को फाइल होगा तो GSTR 2A में तो वो रिस्पेक्टिव मंथ में शो होएगा, बट GSTR 2B में वो नेक्स्ट मंथ के अंदर जाके ऑटो पॉपुलेट होगा. सेम थिंग विद इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी. QRMP स्कीम होल्डर्स जो भी इनवॉइस B2B रिपोर्ट करते हैं वो IIF फैसिलिटी में रिपोर्ट करते हैं, एंड दे हैव द टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग टिल 14th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ. सो अगर वो 14 से पहले अपलोड कर देंगे, इट विल बी शोन इन द रिस्पेक्टिव मंथ. इफ इट इज बीइंग रिपोर्टेड आफ्टर 14th, it will be shown in the subsequent month. Now, just to analyze, what is actually the difference between GSTR 2A and 2B? How does these returns or these documents are different in nature? Just to elaborate, just to take the discussions for our previous slides forward, अगर हम देखते हैं कि 2A के अंदर मेरा अमाउंट बाद में भी आ सकता है, मींस अगर मैं अप्रैल मंथ के अंदर जनवरी के रिटर्न भरता हूं, देन आई वाज एबल टू सी द क्रेडिट इन द मंथ ऑफ जनवरी इटसेल्फ. मींस 2A के अंदर जो मेरी मंथ ऑन मंथ फिगर्स है, दैट आर डायनामिक इन नेचर, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, whereas figures in my GSTR 2B friends, it's static in nature, they are frozen, they are fixed. तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर हम बात करें 2A और 2B का, 2B is a fluctuating statement, you may say. The amount keeps on increasing once my supplier reports his return in R1 or IAF, whereas 2B is a static document. जैसे हमने थर्ड केस सिनेरियो में देखा था, अगर कोई अप्रैल के अंदर फाइल करता है फॉर जनवरी इनवॉइस, it was being auto populated in 2B for the month of March और जनवरी के 2A में आता था. So it means as an SSC, the question of fact here is, क्या मुझे 2A से क्रेडिट लेना है या 2B से क्रेडिट लेना है? अगर मैं 2A से क्रेडिट लेता हूं अपने 3B रिटर्न्स के अंदर, we will check the legal validity कि मुझे 2A से लेना है 3B से, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. We are just checking कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है. अगर मैं 2A से क्रेडिट लेता हूं, then I am eligible for early credit, like in the third scenario. Whereas अगर मैं 2B से क्रेडिट लेता हूं, so the credit to me would be delayed. हमें subsequent months में क्रेडिट मिलेगा. अगर मैं डिपार्टमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो डिपार्टमेंट would want as an assessee to take credit on the basis of 2B. 2B being the static statement, it reflects the amount which has been furnished within the stipulated time. So अगर मैं 2B से input लेता हूं, तो what we have seen as per our experience, as per our departmental dealing is that the department does not generally dispute upon. वो बोलते हैं कि जो भी आपने 2B से क्रेडिट लिया है, we are okay, we don't have any dispute, but still we have to have the reconciliations with 2B also with respect to the overlapping invoices. There might be the case हमें ओवरलैपिंग इनवॉइस मिले हैं. मेरी 3B के अंदर मेरी बुक्स के अंदर 2 months पहले ही फंड रिपोर्टेड थे, बट मैंने 3B के अंदर आज क्लेम करा है. सो देयर आर रिकंसिलिएशन इश्यूज, बट दीज आर समथिंग व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय द डिपार्टमेंट. बट अगर मैं 2A से क्रेडिट लेता हूं, सो डिपार्टमेंट फॉर डिपार्टमेंट आई एम टेकिंग क्रेडिट इन अर्लियर मंथ्स, thereby denying the payment through my cash ledger. मुझे कैश लेजर से उतना ही अमाउंट कम पे करना पड़ेगा जितना मैंने 2A की वजह से क्रेडिट 3B में ले लिया है. सो इन दिस केस डिपार्टमेंट, एज फार एज आवर एक्सपीरियंस इज कंसर्न्ड, दे आर क्रिएटिंग डिस्प्यूट्स एंड दे आर डिनाइंग द क्रेडिट्स ऑन द बेसिस ऑफ 2A. अगर मैं बात करूं, देयर आर मोर रिकंसिलिएशन इश्यूज, क्योंकि आई नीड टू मैप माई इनवॉइस along with 2A pertaining to previous months also. 2B के अंदर स्टैटिक थी, तो मुझे सिर्फ करंट मंथ लेना था, अगले महीने का लेके आई एम डूइंग माई रिकंसिलिएशंस.
Whereas अगर मैं 2A के बेसिस पे रिकंसिलिएशंस करता हूं फ्रेंड्स, I need to download my 2A returns for all previous months. Because of simple reason, supplier could have furnished their R1 for previous months, thereby increasing my amount for previous months. So there are more reconciliations issues. Friend, अगर हम just when we talk about for 2A and 2B, as an SSC अगर मैं बात करूं, there is no loss of credit. चाहे मैं 2A से लूं, चाहे मैं 2B से क्रेडिट लूं, there would be no loss of credit. It is just I am getting the credit delayed by 1 month. That is the only difference. अगर मैं अब हम एज ए लीगल आंसर की बात करें कि हमें किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे क्रेडिट लेना चाहिए, to that friends, अगर हम बात करें, there are two answers attached to it. One is legal answer and one is commercial answer. अगर मैं लीगल आंसर की बात करें फ्रेंड्स, if we see rule 36(4), रूल 36(4) क्या बोलता है? रूल 36(4) बोलता है कि मुझे क्रेडिट सिर्फ उस इनवॉइसेस का मिलेगा जो इनवॉइस मेरे सप्लायर ने, माय सप्लायर हैज फर्निश्ड इन GSTR 1 or R1. In rule 36(4), it does not talk about any GSTR 2A form or GSTR 2A. It simply states जो मेरे सप्लायर ने GSTR 1 के अंदर फर्निश कर दिया है, रिपोर्ट कर दिया है. अगर मैं एज एन एसएससी बात करूं, जैसे हमने देखा GSTR 1 के अंदर जैसे ही इनवॉइस फर्निश हो जाता है, इट ऑटो पॉपुलेट्स ऑनटू माय GSTR 2A एज वेल एज 2B. सो रूल 34 पर से अगर हम बात करें, इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन GSTR 2A एज वेल एज 2B. In addition, friends, second ground, there is one more circular issued by department themselves in the year 2019, wherein they have stated that 2A being a dynamic document, we can take credit on the basis of 2A itself. Department ने themselves have issued a circular stating that कि हम जो भी मेरा 2A में अमाउंट आ रहा है उसके बेसिस पे मैं क्रेडिट लेके अपनी रिटर्न फाइल कर सकता हूं. सो अगर हम लीगली बात करें, सेक्शन 16 थर्ड ग्राउंड, सेक्शन 16 की बात करें, 16 के अंदर भी इट क्लियरली स्पेसिफाइज सेक्शन 39 के थ्रू जो मैं रिटर्न्स फाइल करता हूं, दैट इज माय कंडीशन एंड दैट इज 3B. सो अगर मैं कॉन्ट्ररी देखूं, सो लॉ, एक्ट, सेक्शन, रूल्स डज नॉट डिफरेंशिएट कि मैं किसके बेसिस पे क्रेडिट ले सकता हूं. सो लीगली स्पीकिंग फ्रेंड्स, एज एन टैक्स प्रोफेशनल, इन अवर व्यू, credit from 2A or 2B, anything is possible, but from the departmental point of view, they are creating disputes. कि अगर मैं 2B के बेसिस पे क्रेडिट लेता हूं, they are not creating disputes. 2A के बेसिस पे लेता हूं, they are creating disputes. Just to be on a commercial side of it, if we are on a commercial side, if my client is cash rich and they are having huge cash inflows and they don't want to be dispute prone, they want to have peace of mind, they don't want to tussle with the department, in that case they can definitely take credit on the basis of GSTR 2B, which is more favorable from departmental point of view. And as a assessee also, there is no credit flow or there is no credit loss, as subsequently I would definitely be getting credit once it is being reflected in my GSTR 2B. Now coming back, the validity challenge, the rule 36(4), whether this is a valid provision or not, friends. Many lawyers, many tax professionals have filed the writ petitions with regard to the validity, challenging the validity of rule 36(4), friends. And this writ petitions has also been admitted by High Court, Rajasthan High Court being one of them. And the fate of this 36(4), when we talk about, will be pronounced by the High Courts and Supreme Court only. But when we talk about the grounds, friends, जैसा हमने केस स्टडी 1 में देखा,
जब 39th GST काउंसिल मीटिंग हुई थी, they have discussed the lengths and breadths with regard to validity of rule 36(4), and they themselves have came up with an amendment in section 16 subsection A, subsection 2, subsection AA. They themselves have come with the amendment wherein they have prescribed on the basis of return filed under section 37 would be a valid document for the purpose of claiming the credit. Agar friends, I am not saying anything. If GST Council themselves have introduced this section or amendment to this section, then definitely you all can understand that there was some flaw and which need to be addressed and which has been addressed recently during this amendment. But this amendment, friends, has not been notified till date. Once all states legislative pass this amendment, then only this will be applicable. Before that, this amendment is just a provision in the act, a piece of paper without the enabling provisions, because of a simple fact that the rule cannot supersede the act or the sections. Now coming and after understanding GSTR 2A and 2B, as a taxpayer, we need to understand one thing, that vendor management is the most crucial part, most important part. As far as our experience is concerned, friends, even after replying or even after submitting to our suppliers the reconciliations of the invoices, they are not responding upon. We as a taxpayer need to rigorously follow up with all our suppliers with regard to these reconciliations, because ultimately, in case supplier does not furnish the invoices, then it is a loss to us. Ultimately, it will be we who will suffer the loss because of our supplier. We will face the burden. So ultimately, as a taxpayer, we should revise our PO terms, capturing the conditions that because of the fault of our supplier, in case we are not entitled for credit, then the same commercial amount need to be taken back from our suppliers themselves. So in nutshell, 2A, 2B reconciliations along with 3B and books, this has created a havoc for sure among taxpayers, not among taxpayers, among tax professionals, because we are the one who are facing all musics, and we as a taxpayers, tax professionals need to be active with regard to vendor management, with regard to all the reconciliations. Now coming to the fourth question for today, with regard to input tax credit on CSR expenditures, friend. What is CSR expenditure? What do we mean by corporate social responsibility expenditure? During this COVID time, which we have faced last year also, last year sanitizers and masks were selling. This year, when we talk about CSR expenditure, oxygen concentrators are the thing which the corporates have procured and distributed under their CSR obligations. अगर हम CSR की बात करें, under Companies Act 2013, Section 135 prescribes or specifies class of company which has been mentioned in Companies Act, who need to incur 2% of their average net profit towards satisfying their corporate social responsibility. अगर हम बात करें, कंपनी को mandatory as per Section 135 need to spend 2% of their average net profit in case they meet the stipulated conditions towards the social corporate responsibility. As a tax professional, क्या हम इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, जो हमने ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डिस्ट्रीब्यूट करे अंडर दिस स्कीम और CSR expenditure, whether I am eligible for claiming the credit, we need to analyze it from two angles, friends. First angle is Section 16. क्या 16 की eligibility criteria I am fulfilling? Second criteria is Section 17 with regard to blocked credits, friends. अगर मैं Section 16 देखता हूं, what does Section 16(1) states? It states used or intended to be used for the business.
अगर वो मैंने बिजनेस के लिए यूज करा है या बिजनेस के इंटेंशन के लिए यूज करा है, देन it will be a eligible goods or services which I am procured from for my goods, for my business. अगर मैं CSR expenditure की बात करूं फ्रेंड्स, CSR expenditures are being mandated to me through section 135 of Companies Act. अगर मैं ये expense नहीं करता, then there will be questions to me on my business with how I am running my business. So because of section 135 compulsory in nature, this are definitely intended to be used in business. These are used in the course or furtherance of business itself, and hence to our understanding, the expenditure made under CSR schemes definitely qualify as an eligibility conditions under section 16. Now coming to section 17 friends, when we talk about block credits, क्या ये ब्लॉक क्रेडिट्स के अंदर फॉल करता है? देयर इज सेक्शन 17(5)(h) which states, which debars ITC of goods when they are written off or disposed by the way of gift or free samples. So wordings of the clauses are such, अगर कोई भी मैं गुड्स को डिस्पोज ऑफ करता हूं एज अ गिफ्ट, देन इट इज अ ब्लॉक्ड क्रेडिट, मैं उस आइटम का क्रेडिट नहीं ले सकता। अगर मैं बात करता हूं गिफ्ट की, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय गिफ्ट? गिफ्ट मींस वॉलंटरी, आई एम गिविंग इट बिकॉज of my wish, not because of any other person wish. I am giving this because of my own wish. It is my voluntary nature that I am giving these goods to these persons. These goods cannot be taken back as a right matter from me. The other person cannot demand these goods as his right matter. It is something which I am giving to him because of my own compulsion. Whereas in case of a CSR expenditure, friends, when we talk about, it is an obligation to me. What do we mean by an obligation? Obligation means mandatory in nature, defined through a statute, that if I am not able to give this, then there will be liability arising. Obligation means a duty or a liability arising in law or from a contract, and liability in itself means subjection to a legal objection. Means this obligation to me arises from Companies Act itself, which I as a assessee need to fulfill. So after analyzing it from section 16 and section 17, when we talk about friends, it is very much clear that ITC can be claimed over the same. Now coming to the advance ruling authorities, decisions by advance ruling. UP, Dwarkadhish Sugar Industries Limited, when we talk about friends, it's again an advance ruling authority decisions, UP advance ruling authority decision, which states that these expenditures are in the course of business and not debarred under section 17(5), and hence the assessee or the taxpayer are eligible to claim the expenditures under this scheme or the CSR expenditure. Now, as a firm, as a stand of a firm, when we talk about friends, definitely these CSR expenditures में जो भी हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स इस CSR एक्टिविटीज के तहत under this CSR scheme we have given it free. Definitely in our view, the ITC of these oxygen concentrators can be taken and can be availed. But friends, these will be definitely prone to dispute by the government department, and the matter with regard to availability of credit will be settled at higher judicial forums itself, friends. So as a firm, when we talk about, it is definitely advisable that we take the credit or we claim the credit of the expenditures made under CSR scheme, and subsequently we reverse the credit. After reversal, whenever the higher judicial forum issues the verdict pertaining to these expenditures ITC, we can thereafter re-avail the credit
as discussed by Tushar, there is no time limit prescribed under GST, and it is a well settled principle under service tax and the excise laws that the reclaim of credit does not attract any time period. So as a mechanism, we can take the credit, reverse the credit, and thereafter reclaim it back once the decisions have been finalized. Now over to the next case study. The next case study is treatment in cases where I have availed CGST, SGST credit, but I was supposed to avail IGST credit, or vice versa. Let us take few examples. First example, supplier has issued invoice charging IGST. Supplier ने IGST का invoice issue किया, मैंने गलती से CGST, SGST का क्रेडिट ले लिया, और ड्यूरिंग ऑडिट मुझे पता चला कि भाई ये तो IGST का क्रेडिट था, मैंने CGST, SGST की फॉर्म में ले लिया. दूसरा केस हो सकता है जहां सप्लायर ने CGST, SGST का इनवॉइस रेज किया, बट मैंने गलती से IGST का क्रेडिट ले लिया. तो इन सिचुएशंस में व्हाट आर द लीगल ग्राउंड्स एंड हाउ टू हैंडल इट प्रैक्टिकली, लेट अस डिस्कस. जब हम केस नंबर 1 की बात करते हैं कि सप्लायर ने IGST का इनवॉइस इशू किया, बट मैंने CGST, SGST का क्रेडिट ले लिया, हम पहले ये वाली केस स्टडी डिस्कस करते हैं. तो इस केस में इनवॉइस सप्लायर का था IGST का. जो IGST का इनवॉइस था, ये IGST का अगर मैं क्रेडिट लेता, इसको अगर मैं इस केस में IGST की तरीके से क्रेडिट लेता, तो मैं IGST के अमाउंट को IGST की लायबिलिटी के साथ यूज कर सकता था, CGST की लायबिलिटी के साथ यूज कर सकता था, SGST की लायबिलिटी के साथ यूज कर सकता था. इस IGST को मैं जैसे मर्जी यूटिलाइज कर सकता था फॉर पेमेंट ऑफ माई आउटपुट टैक्स. बट मैंने क्या किया, मैंने IGST का क्रेडिट नहीं लिया, मैंने CGST और SGST क्रेडिट किया. अब CGST और SGST क्रेडिट लिया तो इससे सरकार को क्या नुकसान हुआ, ये देखते हैं. इसको मैं किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ, CGST और SGST के क्रेडिट को. CGST को मैं IGST के अगेंस्ट यूटिलाइज कर सकता हूँ या CGST के. सिमिलरली SGST को मैं SGST के अगेंस्ट यूटिलाइज कर सकता हूँ या IGST के अगेंस्ट. अगर देखा जाए तो इस केस में हुआ क्या है, जो मुझे IGST का क्रेडिट लेना था, मैंने IGST ना लेके CGST, SGST ले लिया, बट इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, रेवेन्यू को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर मैं IGST की तरह ही लेता, मैं वैसे भी इसको तीनों जगह यूज कर सकता था. अब CGST, SGST की तरह ले लिया तो मैं इसको लिमिटेड ही यूज कर सकता हूँ, इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ. इट्स अ रेवेन्यू न्यूट्रल सिचुएशन. जब हम GST में रेवेन्यू न्यूट्रल, फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब हम रेवेन्यू न्यूट्रलिटी की GST में बात करते हैं, हमें सरकार को एक सरकार नहीं समझना कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा. हमें ये समझना है कि सेंटर के रेवेन्यू को भी फर्क नहीं पड़ा और रिस्पेक्टिव स्टेट्स के रेवेन्यू को भी फर्क नहीं पड़ा. आई रिपीट, सेंटर के रेवेन्यू को भी फर्क नहीं पड़ा और रिस्पेक्टिव स्टेट्स के रेवेन्यू को भी फर्क नहीं पड़ा. तो इस केसेस में जो हमारी फर्स्ट केस स्टडी है, इस केस स्टडी के अंदर इस केस स्टडी के अंदर हमने IGST क्रेडिट की जगह जो CGST, SGST ले लिया, इससे गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ. फिर देयर इज अ पॉसिबल आर्ग्यूमेंट and the possible concept called revenue neutrality. There is a principle called revenue neutrality to time and again High Court, Supreme Court, tribunals में upheld किया गया है. तो based on this concept of revenue neutrality कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, and GST being in the new stage, there is a possible argument in our view stating that in such a cases I need not reverse the credit. The situation is revenue neutral. IGST का credit जो मैंने CGST, SGST में ले लिया, ये intact रहना चाहिए, इसमें reversal की कोई requirement नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है, कोई सरकार को नुकसान नहीं है. So that is a possible view which we can take. But obviously at ground level it will be difficult to implement and convince the officer. तो ये व्यू हमें कब लेना चाहिए? तो हम इस पूरे ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. एक पार्ट, ये गलती मुझे तब डिडक्ट हो गई जब मेरे पास उतना टाइम था कि मैं CGST, SGST को रिवर्स करके IGST का क्रेडिट विद इन द टाइम लिमिट 16(4) की टाइम लिमिट के अंदर ले सकता हूँ. अगर मेरे पास ये गलती उसी टाइम लिमिट के अंदर डिडक्ट हो गई, से 2021 की गलती मेरी सितंबर 2021 से पहले ही डिडक्ट हो गई है कि मैंने गलत क्रेडिट ले लिया है, वी एडवाइज दैट इन सच सिचुएशन वी मे रिवर्स द क्रेडिट एंड देन रीअवेल द करेक्ट क्रेडिट. हाउएवर अगर ये सितंबर की टाइम लिमिट भी निकल चुकी है तो ये गलती 2 साल बाद 3 साल बाद जाके मिलती है, या ड्यूरिंग ऑडिट जैसे 17-18 के ऑडिट्स हुए थे उस टाइम जाके हमें ये गलती मिली जो हमने लेटली फाइल करे ऑडिट्स. उस केसेस में अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं रिवर्स करके IGST का क्रेडिट दोबारा ले सकूं क्योंकि टाइम लिमिट ऑलरेडी निकल चुकी थी. इस केस में IGST का कभी भी मैंने क्रेडिट नहीं लिया, मैं फर्स्ट टाइम क्रेडिट लेता, इसलिए टाइम लिमिट मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो गई.
तो उस सिनेरियो के अंदर देयर इज अ लीगल आर्गुमेंट पॉसिबल बीइंग अ रेवेन्यू न्यूट्रल सिचुएशन, मुझे कोई रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट अ लीगल आर्गुमेंट हमें अगर किसी क्लाइंट के लिए लेना पड़े। कंपेयरिंग इट विद सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें क्या था, वेयर क्रेडिट हैज बीन, सिचुएशन नंबर 2 जो हम डिस्कस कर रहे थे वो सिचुएशन ये थी कि सप्लायर ने सीजीएसटी एसजीएसटी का इनवॉइस रेज किया है, सप्लायर ने सीजीएसटी एसजीएसटी का इनवॉइस रेज किया है, बट मैंने क्रेडिट कैसे ले लिया, आईजीएसटी की तरह, मैंने क्रेडिट आईजीएसटी की तरह ले लिया रादर देन सीजीएसटी एसजीएसटी। इसमें देखते हैं कि गवर्नमेंट का कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ। अब उसने अगर सीजीएसटी एसजीएसटी का इनवॉइस इशू किया और मैं सीजीएसटी एसजीएसटी की तरह क्रेडिट लेता तो मैं 2 ही जगह यूज कर पाता उसको, रिस्पेक्टिव हेड में या आईजीएसटी में। अब क्योंकि मैंने गलती से वो क्रेडिट आईजीएसटी की तरह ले लिया, आईजीएसटी की तरह ले लिया, तो ये सारा क्रेडिट मैं सीजीएसटी में यूज करूं, एसजीएसटी में करूं, आईजीएसटी में करूं, अब ये मेरी मर्जी है, मैं इसको कैसे मर्जी यूज कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को नुकसान हो रहा है, यहाँ पर जो क्रेडिट मुझे सीजीएसटी एसजीएसटी की तरह लेना था क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन लिमिटेड है और उसको मैंने आईजीएसटी की तरह ले लिया, तो इन सिचुएशन में देयर इज अ रेवेन्यू लॉस टू द गवर्नमेंट। व्हेन वी से रेवेन्यू लॉस टू द गवर्नमेंट, जो रिस्पेक्टिव शेयर सेंटर या स्टेट का है उसमें आप देखोगे बिकॉज ऑफ आईजीएसटी को आप अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, तो उनके शेयर में भी इंपैक्ट करेगा। तो यहाँ पर सिचुएशन नंबर 2 में हम रेवेन्यू न्यूट्रलिटी का ग्राउंड नहीं ले सकते हैं। सिचुएशन नंबर 2 में वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू रिवर्स द क्रेडिट एंड रीअवेल द न्यू क्रेडिट इफ इट इज विद इन द टाइम लिमिट। अगर मेरा करेक्ट क्रेडिट टाइम लिमिट के अंदर नहीं है, बेटर टू फाइल अ रिफंड। मूविंग ऑन टू द थर्ड केस स्टडी, नेक्स्ट केस स्टडी, एफओसी सप्लाईज। प्रैक्टिकली हमने देखा है कई बार रिसिपिएंट या कस्टमर ही हमें कई सारी चीजें प्रोवाइड कर देता है। एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं आपके लिए कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, आपका घर बना रहा हूँ, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मेरा घर बनाओ, जिसमें आपने बोला कि इसकी कंसिडरेशन 1 CR है प्लस सीमेंट और स्टील आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करोगे मुझे। It is your duty to provide cement and steel. Using that cement and steel, I have to construct this house, and my consideration for construction is 1 crore rupees. तो मुझे जीएसटी किस पे पे करना है, क्या 1 crore rupees पे पे करना है या 1 crore rupees प्लस स्टील एंड सीमेंट की वैल्यू पे करना है। सिमिलरली मोल्ड एंड डाइस, मैं ओईएम मैन्युफैक्चरर हूँ, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे आपके लिए कंपोनेंट बनाने हैं, आपको सप्लाई करना है। You have given me mold and dies free of cost. You said to me कि using my mold and dies, manufacture the component. तो जब मैं component manufacture करके सेल कर रहा हूँ आपको, क्या मैं mold and dies की वैल्यू को ऐड करूंगा इसकी amortized वैल्यू को, क्या मुझे सेल करते हुए इनकी वैल्यू को ऐड करना है। तो इन क्वेश्चंस के जब हम आंसर ढूंढने जाते हैं, इन टाइप की केस स्टडीज के जो रिसिपिएंट मुझे एफओसी सप्लाईज करता है, अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो उस सिचुएशन में का आंसर ढूंढने के लिए इट इज very important to understand one legal concept, and that legal concept is difference between consideration of a contract versus condition of a contract. What the law says, like there are multiple judgments on this part, including the foreign judgments. It says that everything which is provided by the recipient need not always be a consideration. No doubt we agree consideration can be monetary or non-monetary. इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुझे मॉनेटरी कंसिडरेशन भी मिल सकती है, नॉन मॉनेटरी भी, बट हर टाइम जब रिसिपिएंट आपको कुछ प्रोवाइड करता है जरूरी नहीं है वो कंसिडरेशन का फॉर्म हो। कई बार कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिसिपिएंट की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रिस्पांसिबिलिटीज असाइन करी जा सकती हैं, एंड ही इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू मेक अवेलेबल सर्टेन थिंग्स, देन दिस इज ओनली अ कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम किसी के यहाँ ऑडिट करने जाते हैं, किसी कंपनी के यहाँ ऑडिट करने जाते हैं तो हमें रूम बैठने के लिए देते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो रूम का स्पेस जो हमें दिया है वो अपने आप में नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है। वो हमें लंच करा रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि लंच नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है, या हम गेस्ट हाउस में रुक रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि उनका गेस्ट हाउस का जो अकोमोडेशन वैल्यू है वो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है। इट इज ओनली अ कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट इफ आई एम कमिंग एंड डूइंग योर ऑडिट देन यू हैव टू प्रोवाइड मी these थिंग्स एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी बेसिस दिस प्रिंसिपल, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से ड्राफ्टेड है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हुआ है कि एज अ कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर ड्यूटी टू प्रोवाइड मी स्टील एंड सीमेंट। तो अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से ड्राफ्टेड है जहां हम क्लियर कट लिख रहे हैं कि भाई माय कॉन्ट्रैक्ट टू यू इज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विस रिसिपिएंट एज अ कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट to provide cement and steel. Using that cement and steel, the obligation is on the recipient to provide this. The obligation was never on the supplier. The obligation was never on the supplier. In such situation, the value of steel and cement will not be added. Similarly, in mold and dies example, अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि मोल्ड एंड डाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन रिसिपिएंट की थी प्रोवाइड करने के लिए,
सप्लायर की नहीं थी और रिसिपिएंट ने अगर मुझे वो प्रोवाइड करी है, देन दिस इज नॉट अ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, बट इट इज ओनली अ कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं होगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट का खुद एक सर्कुलर आया है मोल्ड एंड डाइस के ऊपर, जहां उन्होंने सेम प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया है और बोला है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से ड्राफ्टेड है जहां उसको ये मोल्ड एंड डाइस एज अ कंडीशन देने थे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मोल्ड डाइस, उस मोल्ड डाइस को यूज करके मुझे जीएस मैन्युफैक्चर करना था और गुड सप्लाई करने थे, तो मोल्ड एंड डाइस की वैल्यू अट्रैक्ट नहीं होगी। प्लीज नोट, जीएसटी इज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, अनलाइक एक्साइज। एक्साइज में डिफरेंस था, एक्साइज में इट वाज a concept of intrinsic value of the goods, the tax was on manufacture, कि आपने जो goods manufacture करे हैं इसकी intrinsic value पे टैक्स लगता था, इसलिए एक्साइज में मोल्ड एंड डाइस की वैल्यू हर केस में इंक्लूड होती थी। Whereas जब हम जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी जस्ट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो इस सिचुएशन में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन रिसिपिएंट का है तो ये ट्रांजैक्शंस और ये एफओसी सप्लाईज ऐड नहीं होंगी। So drafting of contract plays a very important role. Let's move to our next case study. So moving to the next case study, which is with regard to taxability of cross charge vis-a-vis ISD and cross charge and related party transaction. Breaking this case study into two parts: cross charge and ISD. Second is cross charge and related party transaction. Cross charge and ISD. Just to explain this taxability, I am taking a simple example. Suppose I am a manufacturer and I am having my head office in the state of Delhi, and I have 20 more locations across India. So total, I am having 21 registration, HO in Delhi, 20 registration across India. In Delhi, I am my CFO, my strategy team, operation team sits in the state of Delhi itself. If we talk about, अगर मैं बात करूं ISD या क्रॉस चार्ज की, मैंने जीएसटी ऑडिट कराया पूरी 21 स्टेट्स का और उसका इनवॉइस मैंने दिल्ली में लिया। सेकंड थिंग, मैंने दिल्ली का रेंटल, जो दिल्ली रजिस्ट्रेशन था जहां मेरी सारी टीम बैठती थी, उसके रिगार्डिंग रेंटल आई एम बुकिंग इन द स्टेट ऑफ दिल्ली इटसेल्फ. इट इज देयर इन द स्टेट ऑफ दिल्ली. With this background, this example in place, let us see the definition of ISD. What do we mean by ISD? So ISD अगर हम बात करें, ISD is an office which receives an invoice pertaining to goods or services which has been consumed in different states. अगर ISD की बात करें, ISD act as an office, उसको एक invoice मिलता है and that registration need to distribute the credit to the respective states. मैं किस मैनर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? I can distribute C सेंट्रल टैक्स एज अ सेंट्रल और ISD. I को मैं I में भी दे सकता हूं, C में भी दे सकता हूं, S में भी दे सकता हूं. सेम थिंग स्टेट, SGST को मैं SGST में भी दे सकता हूं, NIGST में भी दे सकता हूं. अगर मैं कंडीशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, एज एन ISD रजिस्ट्रेशन की बात करूं, इसी एग्जांपल के अंदर जस्ट आई एम टेकिंग अ केस. सपोज मेरा बैंगलोर का रजिस्ट्रेशन था. तुषार, इन केस वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट वन. अगर मेरा कोई बैंगलोर का रजिस्ट्रेशन था, प्रीवियस वन, अगर मेरा कोई बैंगलोर का रजिस्ट्रेशन था एंड आई हैव एंगेज अ कंसल्टेंट इन द स्टेट ऑफ बैंगलोर, दिल्ली इटसेल्फ, फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एन असेसमेंट ऑफ बैंगलोर GST. दिल्ली का कंसल्टेंट है, वो बैंगलोर GST की असेसमेंट क्लोज करा के आता है और उस कंसल्टेंट ने दिल्ली के अंदर एक ISD पे इनवॉइस रेज कर दिया. सो इन दैट केस द ISD ऑफिस विल डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू द रिसिपिएंट वेयर इट हैज एक्चुअली बीन कंज्यूम्ड. बेंगलोर स्टेट के अंदर जिसकी जो ये सर्विसेज है वो बैंगलोर कर्नाटका स्टेट में कंज्यूम हुई है. सो ISD दिल्ली विल डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका. अगर कोई कंसल्टेंट ने दो जगह का, दो स्टेट्स का काम करा है, in that case the ISD Delhi will distribute the credit to both these states on the basis of turnover. Third case, अगर ISD नंबर पे हमने एडवर्टीजमेंट सर्विसेज रन करनी, मींस आई हैव बुक्ड एडवर्टीजमेंट सर्विसेज and because of these advertisement services all the 20 states will get their respective shares of sales. In that case, as an ISD office, I need to distribute the credit pertaining to these advertisement services
to all the 21 states, 20 plus Delhi state. Delhi के अंदर मेरा normal GST में regular GST number भी है and ISD भी है. So ISD, all 21 states I need to distribute on the basis of turnover. Now coming to the difference between cross charge and ISD. In case of ISD, friends, I am not consuming that services or goods in the state of Delhi itself, whereas I am consuming the services in other states. Subsequently, जैसे हमने रेंटल की बात करी, रेंटल की वजह से, रेंटल जहां पर मेरी स्टाफ बैठता था, जहां मुझे उसकी सर्विसेज, बिजनेस मैनेजमेंट सर्विसेज की फॉर्म में अपने अदर लोकेशंस को क्रॉस चार्ज करना था, द रेंटल, it has actually been consumed in the state of Delhi itself. It cannot be stated that I am paying rent for the state of Karnataka. जो मैंने रेंट दिल्ली में कंज्यूम करा है with other facilities of employees or other case, it can be said that I am providing my business management services to all the locations across India. So in this case, I am providing or I am furnishing business support service across India. Thereby, it is a case of cross-charge as the services has been consumed in the state of Delhi itself. अगर हम बात करें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और क्रॉस चार्ज की, फ्रेंड्स, एक ग्रुप है SBI. SBI की SBI बैंकिंग कंपनी भी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी है, उसकी म्यूचुअल फंड कंपनीज भी हैं, उसकी एंसिलरी बिजनेस भी है, रनिंग इनटू डिफरेंट कंपनीज. All these companies are having registered office similar, same registered office. अगर same registered office है और SBI trade name है, वो all 20 locations, अगर हम बात करें, all 20 locations are using the common trade name. So in this case, can it be said that this is a supply? I am providing supply to all the 20 states with regard to common trade name, with regard to the common infrastructure जो rental में SBI main holding company में pay कर रहा था, whether it can be said that I am providing the rental services or the infrastructure services to all the other 20 companies? Definitely yes. These being the companies who are related among each other, definitely we are providing the services to them. Same is the case with the distinct person. अगर हम बात करें, जैसे हमने previous example लिया, बिजनेस मैनेजमेंट सर्विसेज इन द फॉर्म जो हम ऑल 20 स्टेट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट कैन बी सेड दैट आई एम प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट सर्विसेज टू ऑल द 20 लोकेशंस. अगर हम बात करें, आई एम डिफरेंशिएटिंग दीज सर्विसेज इनटू टू पैरामीटर्स. वन इज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, वन इज सप्लाई विद कंसिडरेशन. अगर मैं विदाउट कंसिडरेशन की बात करूं, इफ आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, as an auditor or as a tax professional, we need to map out all these type of transactions while going through the books of accounts, while understanding the business transaction, that these type of transactions will definitely be subject to tax, और इसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा, because these are in the nature of supply. अगर हम section 7 देखते हैं, these services fall in the nature of supply over which I need to pay the taxes appropriately, and we also need to follow the valuation rules. Not going inside that, we need to follow the valuation rules, wherein on the basis of which I shall raise the invoice. Friends, these valuation rules also applies to the cross transactions, that is transaction within the same PAN, and also to the related party transaction. Now coming to another interesting case, suppose a case where the Maharashtra, suppose I am having a plant in the state of Maharashtra and I am having 3 offices in the state of Chennai, Delhi and Calcutta. I am producing goods in the state of Maharashtra plant, and I have 3 more offices who are acting as a representative offices. So जो मेरे other 3 offices हैं, what they are doing is that they are booking the orders for me and they are giving it back to the Maharashtra plant for the purpose of delivering it, for the purpose of dispatching it to the respective clients. So अगर हम बात करें इस केस में, plant is distributing the goods and the 3 locations are providing the marketing services. So in this case, definitely we can say
that my representative office are providing marketing services to the HO, and in turn it will be a case of cross charge wherein I need to bill for the marketing services. Friends, अगर सोचो, अगर मैं मिल्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था जिसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता, नॉट फ्लेवर, जिसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता, इन दैट केस आई एम प्रोवाइडिंग एग्जम्प्ट सप्लाई, मुझे कोई आईटीसी नहीं मिलना. सो जो 3 लोकेशंस हैं, क्या वो मुझे बिल करना था उसको? यस, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग marketing services or marketing related services to the plant for which they definitely need to bill upon. Now moving to the next case study, friends. Issue of credit note and the liquidation damages. Before understanding or before getting into this case study, I am taking an example. Example is such that I am a EPC contractor and I have given a contract to my subcontractor for say ₹100, and I have put in a condition that in case he does not complete the contract within a period of 1 year, in that case I will charge ₹10 from him. So cases are such that total consideration is ₹100, and in case he does not complete the contract within the stipulated time, I will charge him ₹10. So whether I should issue a credit note pertaining to the same or it is a separate supply. Just to understand this case, let us understand in what all circumstances I can issue a credit note. So अगर मैं as per section 34, a taxpayer or an assessee can issue a credit note in a case where taxable value or tax on invoice exceeds the value. Means जहां पर मैंने टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया था या मैंने टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया था. वेयर सेकंड केस वेयर देयर आर डेफिशिएंसी इन गुड्स और सर्विसेज. जो मैंने गुड्स दिए, they were not up to the mark, they were below the quality standards which the other person has ordered to me, and hence I need to, there was deficiency in goods and I need to give them the credit note. Third case, these goods are returned back to me. अगर ये goods मुझे वापसी मिलते हैं, in case these goods are returned back to me, then I can issue the credit note. The credit note under section 34 can be issued only up till September of next year. Means for year 2021, I can issue the credit note up till September of next year or audit or annual audit, whichever was earlier. अगर हम बात करें different cases की, first case, reduction in base price. In case I have reduced the base price of my contract, मेरे contract में ₹100 था, because of some reasons, because of deficiency in services or deficiency in goods, in the contract price I have reduced the base price itself. In that case, definitely I can issue a credit note because I am covered under section 34 under the clause deficiency of services. Second case, in case of bad debt. Bad debt is a case where debtor is not able to make payment to me. मैंने उसको सर्विस सप्लाई कर दी, मेरे बुक्स में रिकॉर्ड कर दी है, बट रिसिपिएंट इज नॉट पेइंग बैक मी द अमाउंट. जैसे ही वो मुझे अमाउंट पे नहीं करता, व्हाट आई एम रिकॉर्डिंग इन माय बुक्स इज आई एम राइटिंग हिज अमाउंट एज अ बैड डेट. जैसे ही मैं बैड डेट बुक करता हूं, whether I can claim the credit through credit note under section 34? No, friends. There is no provision under section 34 which states for adjustment of bad debts. In this case, the only repercussions which we have is in the form of refund. We can apply a refund in such a case, but under section 34 we cannot issue a credit note. Third case, cancellation of a contract. जो हमने example लिया, suppose I have made advance payment to my subcontractor, but because of some reason, and on that advance payment he has made payment to the department. Now because of some reason I have cancelled down the contract and the contract is unavailable. In such a case,
जहां पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, जहां पर सर्विसेज रेंडर ही नहीं हुई है, whereas the tax has been paid by supplier to the government, in that case definitely we can issue, the supplier can issue a credit note under section 34 and reduce his outward liability. Now keeping this in background, let us see our case. 100 रुपए का मैंने काम दिया अपनी क्लाइंट को, अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को. If in case he does not complete the contract, then I will, within a period of 1 year, then I will charge him ₹10. अगर मैं 10 रुपीज उससे चार्ज करता हूं as a contractor, main contractor, then it is in the nature of damages, penalties or compensation, because the other person has not done as per contract. अगर मैं बात करूं, there is a definition or a clause under Schedule 2 of CGST Act which states agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or situation or to do an act will be treated as a supply of service. Whether this amount of 10 rupees will be covered under this definition of tolerate to act or not. If we see various jurisprudence under GST, advanced rulings under GST, if we see Maharashtra State Power Generation Company, then Bajaj Finance Limited, there are various advanced rulings which have held these type of transactions to be tolerate an act, and which the court has verdicted to be levied under GST. Whereas it is very interesting to note, friends, that under Service Tax Act, the decisions was contrary. अगर हम सर्विस टैक्स के डिसीजंस की देखें, HCL Learning Limited, KN Food Industries Private Limited, what they have told is that this 10 rupees of amount which was mentioned in the contract was never supposed to be a part of consideration. These were only condition of a contract. The buyer and the seller, the supplier and the recipient, the main intention of both of these two were not to have the penalty, whereas the main intention was to complete the contract within the specified time period. So these were merely condition to a contract. These were 10 rupees was not a consideration to a contract when we talk about. There are also foreign jurisprudence pertaining to the same under Australian GST, under New Zealand GST, through which Indian GST has been borrowed upon, which also clearly specifies that these type of transaction will not be treated as tolerate to an act, and it is not a supply in itself over which GST has to be paid. But contrary, when we see advanced rulings under GST, the authorities have levied taxes on such transactions. Now, not going into the cases whether these type of transactions tax has to be paid or not, we are taking a case where as a supplier, जब ये 10 rupees पे मैं GST पे करूंगा, my subcontractor, when I am charging ₹10, whether I need to raise an invoice or my subcontractor can issue the credit note. Just in another words, myself, I have given contract to B of 100 rupees, and in case it does not complete the project within time limit, I will charge him 10 rupees. So क्या मैं A will raise 10 rupees as an additional invoice or separate supply, or B, जो मेरा subcontractor था, he can raise a credit note of ₹10 and deduct from 100 rupees itself. To answer this question, friends, we need to see the terms of the contract. अगर contract के अंदर ये 10 rupees consideration का ही part था, means consideration के ही अंदर ही defined था कि if B completes the contract within a period of 1 year, he will be given 100 rupees, and in case he does not complete the contract within a period of 1 year, then he shall be entitled for a consideration of ₹90. In such a case, we can definitely issue a credit note, thereby adjusting the contract price. Whereas, friends, in case of a contract where we have mentioned this 10 rupees as a separate condition in itself,
मींस कंसिडरेशन तो 100 ही है, बट अगर मैं कंप्लीट विद इन टाइम पीरियड नहीं करता, देन द मेन कॉन्ट्रैक्टर विल चार्ज 10 rupees फ्रॉम द सप्लायर. In that case, friends, the main contractor needs to issue a separate supplies with regard to the liquidation damages. So just to conclude, we have to see the terms of the contract to differentiate whether we need to issue the separate invoice or we can issue the credit note. Over to you, Tushar, the next case study. Moving to our next case study of taxability of discount schemes. Friends, we are aware in automobile sector, FMCG sector, pharma sector, etc. The dealers, the distributors gets various kinds of discounts and incentives from the manufacturer. The issue is on the taxability of such kinds of discounts and incentives which they receive from the supplier. Whether the tax has to be paid on such discounts and incentive amount which the distributor has received from the supplier. ये एक बहुत ही important issue है. In fact, service tax में तो number of show cause notices distributors को pharma sector में, FMCG sector में, automobile sector में issue हो रहे हैं कि आपको जो discount amount मिल रहे हैं, आपको जो incentives मिल रहे हैं, उनके ऊपर service tax pay करो. वो similar type of investigations GST में भी चल रही है. तो इस केस स्टडी को समझने के लिए हम 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं. हम टोटल 5 एग्जांपल लेंगे. किस किस टाइप के डिस्काउंट डिस्ट्रीब्यूटर को मिलते हैं. पहला हो गया वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट. वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट क्या होता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर इतनी क्वांटिटी परचेज कर ले तो उसको 3% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, 3% एडिशनल अमाउंट मिलेगा. मैं जनरली फार्मा सेक्टर या एफएमसीजी सेक्टर में हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर को. अगर उसने अपना टारगेट मीट कर लिया इतने पीरियड के अंदर, तो हमने आज अगर 100 रुपीज का सप्लाई किया है तो उसके ऊपर 3%, 3 रुपए एडिशनल डिस्काउंट में उसको बाद में दे दूंगा ऑन कंप्लीशन ऑफ हिज टारगेट. तो वो 3 रुपए उसको मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को 3 रुपए मिलते हैं. दूसरे काइंड ऑफ डिस्काउंट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते हैं दैट इज बेस्ड ऑन हिज सेल मेड टू द कस्टमर. जो पहले वाला था दैट वाज डिपेंडेंट अपॉन हिज परचेजेस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. सेकंड काइंड ऑफ अमाउंट व्हिच ही रिसीव, सेकंड काइंड ऑफ डिस्काउंट इज wherein this discount is based on his sales made to the retailer. अगर इस टाइप के टारगेट बेस्ड डिस्काउंट है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर इतनी क्वांटिटी इतने टाइम में बेच देता है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर 100 क्वांटिटी विद इन 6 months बेच देता है, then he will be entitled for an additional discount of 3%. So this is the second kind of amount or second kind of discount which a distributor receive. Third is sometimes manufacturer distributor को इंस्ट्रक्ट करता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसको हमें मार्केट में और अच्छे से मार्केट करना है, इसलिए इसका जो एमआरपी है 10 रुपए में आप जो मार्केट में बेच रहे थे, आप 10 रुपए में ना बेच के आप 8 रुपए में बेच दो. तो मैन्युफैक्चरर और द डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर आज द डिस्ट्रीब्यूटर और द डिस्ट्रीब्यूटर आज द रिटेलर बोलते हुए कि ये अमाउंट आप, ये प्रोडक्ट आप सस्ते में मार्केट में बेच दो और जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो मुझसे ले लो. तो थर्ड कैटेगरी ऑफ अमाउंट विच डिस्ट्रीब्यूटर कैन रिसीव इज द अमाउंट विच ही गेट्स फ्रॉम द सप्लायर ऑन अकाउंट ऑफ सेल एट लोअर प्राइस. फोर्थ कैटेगरी इज कि भाई आप स्पेसिफिक कस्टमरों को बेचोगे, आप गाड़ी कॉर्पोरेट कस्टमर को बेचोगे, आप ये चीज स्पेसिफिक कस्टमर को बेचोगे, तो उस केस में मैं आपको एक एडिशनल अमाउंट दे दूंगा. एंड फिफ्थ कैटेगरी इज कि वो स्पेसिफिक एक्टिविटी मेरे लिए करता है, उसने मेरे लिए इवेंट ऑर्गेनाइज किया, उसने मेरे लिए मार्केटिंग करी, उसने मेरे लिए प्रगति मैदान में किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया, तो उसके लिए मैं उसको स्पेसिफिकली पैसा दे रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर को. तो डिस्ट्रीब्यूटर को एक वॉल्यूम डिस्काउंट मिल सकता है विच इज बेस्ड ऑन हिज परचेजेस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. सेकंड डिस्काउंट वो है विच इज डिपेंडेंट अपॉन सेल मेड टू द रिटेलर. थर्ड डिस्काउंट वो है जिसमें ये सस्ता माल बेचता है रिटेलर को और वो मैन्युफैक्चरर से पैसे लेता है ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरर, जो डिफरेंशियल अमाउंट है. फोर्थ कैटेगरी वो होगी कि मैंने स्पेसिफिक कस्टमर को बेचा मैन्युफैक्चरर के कहने पे सस्ते प्राइस पे और पैसा मैन्युफैक्चरर से ले लिया. फिफ्थ कैटेगरी वो है कि मैंने स्पेसिफिकली कोई इवेंट करा, कोई एक्टिविटी करी और पैसे मैन्युफैक्चरर से ले लिए. ये 5 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज है जहां मुझे एज अ कस्टमर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर पैसे मिल रहे हैं. अब इनकी टैक्सेबिलिटी हम समझ लेते हैं, जिसके लिए हमें सेक्शन 15 समझना बहुत जरूरी है. सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट डिस्काउंट, जिसमें 2 केसेस हैं. पहला केस इज अ ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज अ केस जो मैं इनवॉइस में ही डिस्काउंट काट के दे रहा हूँ. से हम क्रोमा जा रहे हैं, टीवी ले रहे हैं, 100 रुपीज माइनस 10 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट आउटराइटली मिल रहा है और 90 रुपए का ट्रेड इनवॉइस रेज हो रहा है, जीएसटी इनवॉइस रेज हो रहा है. सेकंड इज कॉल्ड अ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट. पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इज अ केस वेयरइन मैंने ऑलरेडी सप्लाई कर दिया है और डिस्काउंट मुझे बाद में मिलता है, बट डिटरमाइन पहले हो जाता है. आई रिपीट, डिस्काउंट डिटरमाइन सेल के टाइम पे हो जाता है, बट एक्चुअल में जो मैं डिस्ट्रीब्यूटर को देता हूँ या अपने कस्टमर को देता हूँ वो बाद में देता हूँ. तो अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं
ट्रेड डिस्काउंट का, जो हमने बोला कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर को सेल कर रहा हूँ और उसने 100 क्वांटिटी मुझसे परचेज कर ली तो उसको 3% एडिशनल डिस्काउंट दूंगा। तो ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट कब क्वालिफाई करेगा? ये तब करेगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहला, ये डिस्काउंट स्टार्टिंग में ही पता होना चाहिए, पहली सेल से पहले ही मालूम होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर को कि भाई एक टारगेट बेस्ड डिस्काउंट स्कीम है, अगर तुम 100 क्वांटिटी परचेज कर लोगे तुम्हें 3% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ये जो मैंने पहली सेल करी है 100 क्वांटिटी की, जो पहली क्वांटिटी बेची है, उससे पहले ही ये हमारे डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। सेकंड, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है वो प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दे अगर मैं क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूँ उस सिचुएशन के अंदर। तो सेक्शन 15(3)(b) के अंदर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट तभी मिलेगा जब वो मुझे पहले से ही पता हो और डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली कवर्ड हो कि मैं इस टाइप का डिस्काउंट दूंगा। वो स्कीम्स कहीं ना कहीं मेरी वेबसाइट में हो, मेरे एग्रीमेंट में हो, कम्युनिकेशन में हो, ईमेल में हो, किसी भी फॉर्म में हो। With this basic legal background, let us come to our case studies। जो हमने 5 केस स्टडीज और 5 एग्जांपल लिए अपने केस में। पहला वाला केस था डिस्काउंट बेस्ड ऑन परचेजेस मेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर मैन्युफैक्चरर। तो इस सिचुएशन में क्योंकि ये अगर अमाउंट मुझे पहले ही मालूम है, ये स्कीम पहली सेल से, देन इट विल क्वालिफाई एज अ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में जीएसटी लॉ क्लियर कट कहता है कि मैन्युफैक्चरर को इस केस में क्रेडिट नोट इशू करना है। उसके बाद दोनों ऑप्शन है, जीएसटी क्रेडिट नोट इशू करने के या कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करने के। जीएसटी क्रेडिट नोट इशू करेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोपोर्शनेट आईटीसी भी रिवर्स करेगा, और कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करेगा तो आईटीसी रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर को, बिकॉज इट इज अ रेवेन्यू न्यूट्रल सिचुएशन। इस सिचुएशन के अंदर मैन्युफैक्चरर को क्रेडिट नोट इशू करना है, चाहे वो जीएसटी क्रेडिट नोट हो या कमर्शियल क्रेडिट नोट हो। जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटर को मिला है उसके ऊपर अलग से कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है, उसके ऊपर अलग से जीएसटी कोई जमा नहीं करना डिस्ट्रीब्यूटर को। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द सप्लायर। So this is first category. Second category was the discount which the distributor received based on his sale made to the retailer. डिस्ट्रीब्यूटर ने जो मार्केट में माल बेचा उस बेसिस पे कि उसने वो जो टारगेट पूरा किया कि 100 क्वांटिटी बेच दी और उसको 3% का एडिशनल डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर से मिलना था, उस बेसिस पे ये डिस्काउंट रिसीव किया डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर से। क्या इस डिस्काउंट के ऊपर टैक्स लगेगा? क्या उसको जीएसटी डिस्ट्रीब्यूटर को पे करना है? या इस केस में भी सप्लायर कैन इशू अ क्रेडिट नोट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया फर्स्ट केस में। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस केसेस, टू माय माइंड, अगर डिस्काउंट उसकी सेल पे बेस्ड हो या उसकी परचेज पे बेस्ड हो, इट शुड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन। मैं सेल तो तभी करूंगा ना जब मैं कोरस्पॉन्डिंगली परचेज भी करूंगा। मैं सेल तभी करूंगा जब मैं कोरस्पॉन्डिंगली परचेज कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली इट इज इनडायरेक्टली लिंक्ड माय परचेज इज ओनली, कि भाई मैं 500 क्वांटिटी बेची है तो मैंने अल्टीमेटली खरीदी भी होगी। तो बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट, इन आवर व्यू इसका आंसर वही रहेगा जो हमने केस स्टडी नंबर 1 में डिस्कस किया। इस केस में भी सप्लायर जीएसटी क्रेडिट नोट सप्लायर को इशू करना है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी चार्ज नहीं करना। सप्लायर या तो क्रेडिट नोट जीएसटी वाला इशू करे या कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करे, दोनों ऑप्शन है। कमिंग टू केस स्टडी नंबर 3, इस केस स्टडी में हमने सप्लायर को हमने क्या बोला अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कि तुम्हारे पास ऑलरेडी जो स्टॉक पड़ा हुआ है, इसमें हमने क्या बोला, ऑलरेडी हम सेल कर चुके थे एक पर्टिकुलर स्टॉक से पेप्सी टू माय डिस्ट्रीब्यूटर। अब हमने उसको बोला ये पेप्सी जो तुम्हारे पास पड़ी हुई है ऑलरेडी स्टॉक में, इसको तुम 20 रुपए की जगह 18 रुपए में मार्केट में बेच दो। तो इस केस में आई हैव टोल्ड माय डिस्ट्रीब्यूटर टू सेल द प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस टू बूस्ट माय मार्केट, एंड द डिफरेंशियल अमाउंट जो उसने 20 रुपए का माल 18 रुपए में बेचा, तो 2 रुपए में उसको रिम्बर्स कर रहा हूँ। कि 2 रुपए जो मैं उसको रिम्बर्स कर रहा हूँ, क्या इस केस में मुझे क्रेडिट नोट इशू करना है या इट इज अ कंसिडरेशन फॉर अ सेपरेट सप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूटर टू मैन्युफैक्चरर? तो सबसे पहले अगर हम पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की बात करें, दिस इज नॉट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ये मुझे सेल के टाइम पे मालूम ही नहीं होता, ये सेट चीज तो बाद में डिस्कस होती है। सेल तो ऑलरेडी हो चुकी है उस प्रोडक्ट की, बाद में मैंने देखा कि प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं रहा, इसलिए मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को कह रहा हूँ कि सस्ता बेचे। तो ये मेरे एग्रीमेंट में कभी लिखा नहीं था कि मैं 2 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट दूंगा सेल से पहले, ये तो बाद में हमने डिसाइड किया, इसलिए इट इज नॉट अ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। इस केस में मैं सेक्शन 34 के अंदर क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकता। अब रियल चैलेंज क्या आता है कि ये जो 2 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर को मिले हैं, ये 2 रुपए क्या कंसिडरेशन है किसी सर्विसेज के लिए या फिर ये एडिशनल कंसिडरेशन है उस सामान के लिए जो मैंने मार्केट में बेचा है? तो हाउ डू आई टैक्स दिस अमाउंट? तो डिस्ट्रीब्यूटर को क्या टैक्स ऐसे लगाना चाहिए कि मैंने ये पेप्सी मार्केट में 18 रुपए में बेची है और 2 रुपए मुझे जो मिले हैं वो मैन्युफैक्चरर से मिले हैं। तो इनफैक्ट मुझे पेप्सी के रेट के ऊपर जो 40% होता है, बेस्ड ऑन दैट डिस्ट्रीब्यूटर को 20 रुपए पे टैक्स जमा करना है, क्योंकि 18 रुपए उसने कस्टमर से कलेक्ट करे और 2 रुपए उसने मैन्युफैक्चरर से कलेक्ट करे। या फिर इसको मैं एक सेपरेट सर्विस के कंसिडरेशन मानूं अंडर क्लॉज 5 जिसमें लिखा है एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट,
कि मैंने उसके कहने पे सस्ता बेचा. I have entered into an agreement with the manufacturer to sell the goods at a lower rate based on which I'm getting 2 rupees. So it's a separate agreement of selling goods at a lower rate. I have agreed to sell it at a lower rate on manufacturer's instruction for which I'm getting the 2 rupees. So in my view, it is not an additional consideration. ये पेप्सी की एडिशनल कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि जब मैंने मार्केट में पेप्सी बेची 18 रुपए की, तो मार्केट वालों को नहीं मालूम कि 2 रुपए मुझे मैन्युफैक्चरर से मिलेंगे. एडिशनल कंसिडरेशन तभी लगना चाहिए क्लॉज तब तीनों पार्टीज को आपस में मालूम हो कि इतना पैसा इससे मिल रहा है, इतना पैसा इससे मिल रहा है. सो इन माय व्यू इट इज ओनली अ कंसिडरेशन फॉर अ सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज. इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी इनवॉइस रेज करना चाहिए मैन्युफैक्चरर के ऊपर और इसके ऊपर जीएसटी जमा करना चाहिए. सिमिलरली जब हम केस स्टडी नंबर 5 की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट एटसेट्रा बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, और जिसके लिए मुझे सेपरेट पैसे मिलते हैं, कोई प्रमोशनल कैंपेन मैंने किया, कुछ भी एक्टिविटीज करी, तो उस केसेस में इट इज अ सेपरेट कंसिडरेशन फॉर द सर्विसेज व्हिच डिस्ट्रीब्यूटर इज प्रोवाइडिंग. और इस केसेस में डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी इनवॉइस रेज करना चाहिए मैन्युफैक्चरर के ऊपर. तो सारा अमाउंट जो जीएसटी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे, एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, हर केस में जो डिस्काउंट है, इंसेंटिव स्कीम्स है, हर केस में टैक्स लगे ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ केसेस ऐसे होंगे जो अमाउंट उन्होंने रिसीव किया है व्हिच विल क्वालिफाइज एज अ डिस्काउंट, और उस केसेस में मैन्युफैक्चरर को क्रेडिट नोट इशू करना है, चाहे कमर्शियल हो या जीएसटी हो. जैसे हमने केस नंबर 1 या 2 डिस्कस किया, टारगेट बेस्ड स्कीम्स एटसेट्रा, डिस्काउंट बेस्ड स्कीम्स, अगर ये सारी चीजें हैं देन इट इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर एनी सर्विस. वेयरएज जो हमने बाकी केसेस डिस्कस करे, अगर उसको पैसा इसलिए मिल रहा है कि उसने माल सस्ते में बेचा, स्पेसिफिक कस्टमर को बेचा, उसने कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी करी, इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन की, कैंपेन रनिंग की, देन दीज ऑल आर the activities which distributor is performing on behalf of manufacturer, and the amount which the manufacturer is giving to the distributor will qualifies as a consideration in the hands of distributor. और distributor को उसके ऊपर जीएसटी जमा करना है. So this is very important to note. हमारे जितने भी distributor clients हैं एक्सेट्रा हैं, उनको जितने इंसेंटिव स्कीम्स मिल रहे हैं, हमें इंसेंटिव स्कीम्स की बारीकियों में जाना है, हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कीम्स देखनी है और ये चेक करना है कि कौन सी स्कीम के तहत पैसा मिला है. क्या वो केस स्टडी नंबर 3, 4, 5 टाइप की स्कीम है तो टैक्स लगेगा. अगर वो केस स्टडी नंबर 1, 2 की टाइप की स्कीम है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा. एंड साइमल्टेनियसली मुझे टीडीएस की कंप्लायंस भी देखनी है कि मैन्युफैक्चरर टीडीएस तो नहीं काट रहा. अगर हम कह रहे हैं कि केस स्टडी नंबर 1 एंड 2 के पैसे मिल रहे हैं, then this is not for any services, it's only in the nature of discount which he is receiving, post supply discount. तो उस केसेस में मैन्युफैक्चरर को भी टीडीएस नहीं काटना चाहिए. Whereas when we talk about case study number 3 or 5, in cases में it is for the services which the distributor is performing, accordingly manufacturer को TDS भी काटना चाहिए पैसे देते हुए. So simultaneously we have to look into the TDS provision also and ensure TDS implication or GST implication are aligned for the same transactions. Now over to you, Preetham, for the last case study. Yeah. So coming to the last case study for today, that is with regard to the ordinance passed by the Supreme Court of India, which thereby extends limitation period. So अगर हम बात करें कोविड पीरियड की 2020 में और 2021 में, फ्रेंड्स 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डिनेंस पास करा था, 2021 में भी एक ऑर्डिनेंस पास करा था जिससे कि लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड करा गया था. अगर हम जीएसटी की बात करें, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय लिमिटेशन पीरियड. फ्रेंड्स, द लॉ ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्स द time limit for filing suits within the agreed person by an agreed person till when he can approach the court or authority to seek redressal, thereby meaning by agreed person जिसके against order pass हुआ है, till what time he can approach the appellate authorities for filing the suits. The limitation period prescribes कि कितने टाइम पीरियड में मुझे अपील फाइल करनी है. अगर मैं लिमिटेशन पीरियड की बात करूं अंडर जीएसटी लॉ सेक्शन 54 स्पेसिफाइज 2 years कि आई नीड टू फाइल रिफंड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years. अगर मैं सेक्शन 107 की बात करूं, इट स्टेट्स दैट अपील टू द appellate authority कैन बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर और फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन ऑफ द ऑर्डर. मीन्स जिस दिन मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है उसके विद इन 3 months I can file appeal to the appellate authorities. Keeping this in view in background, what in 2020 what Supreme Court told is that in the view of COVID-19 pandemic, the Supreme Court of India vide an order dated 27th March 2020. They have extended the limitation period prescribed under any law with effect from 15th March 2020 till further orders. Now, seeing the last year ordinance, if we see last year ordinance, what they have laid down is that there are 2 subsets attached to it.
The first subset is the limitation period. For the purpose of computing this limitation period, for example, filing appeals to the appellate authorities, for filing refund application, for any proceedings applications, in such a case, what they have told is that in ordinance is the first part, the period from 15th March 2020 till 14th March 2021 shall be excluded. Thereby, जो भी पीरियड इन दोनों टाइम के बीच में आएगा, that will be excluded, as if this period does not come in the picture, and the time limit which was there as on 15th March 2020, it will start from 15th March 2021. Second subset to this is that अगर कोई time period with regard to this limitation period expires within this period, means 15th March 2020 and 14th March 2021 के बीच में अगर कोई टाइम पीरियड एक्सपायर होता है, in that case, as a assessee, I will be having two options, or I will be having the maximum period pertaining to the same with respect to 90 days, or the longer period which was there in existence as on 15th March 2020. Just to understand this with the help of an illustration, suppose 1st February 2020 was the time on which I have received an order, and I was having a limitation period of 2 years. Because of this limitation period prescribed by Supreme Court, the ordinance passed by Supreme Court, if we see, the normal period which was there available to me was from 1st February 2020 till 31st January 2022. But because of this ordinance, the whole period of 1 year from 15th March 2020 till 14th March 2021 shall be excluded, which means from 1st February 2020 till 14th March 2020, that is 42 days will be calculated, and balance 688 days will be computed from 15th March 2021, thereby increasing my limitation period by 1 more year, that is till 28th of January 2023, friends. Coming to the second subset, where the limitation period was expiring in this period, that is 15th March till 14th March 2021. उस केस में I would be having higher the balance number of days or 90 days, whichever is the higher case, I would be getting that days as my limitation period. Just to illustrate it, suppose there was an action which took place on 15th May 2017, and I was having a limitation period of 3 years. Within 3 years, I could have filed the suit. So normal period which was available to me was for 3 years starting from May 15, 2017. So it was expiring on May 14, 2020. Tushar, if we could move to the next slide, 20. So अगर मैं इस ordinance की date से देखूं 15th March 2020 से 15th May 2020, so there was 61 days. I was left, the limitation period of 61 days was falling between these two dates. So 61 days being lower of 90 days, 61 days and 90 days. The lower is 61 days. So as an assessee, I would be entitled for the extended limitation period of 90 days, which will start from 15th March 2021 and which will expire on June 13, 2021. If I take a case, in this case itself, if my limitation period was expiring in the month of June, 30th June 2021, in that case, there was total 107 days available to me, which was expiring in this limitation period. So in this case, 107 being higher than 90 days, I would be getting an extended period of 107 days, which will be starting from 15th March 2021 onwards. So if we see both the illustrations, जो भी higher period available है, I would be getting the higher number of days available starting from 15th March 2021.
Now friends, same way in 2021 also, because of COVID, Supreme Court again has suo motu passed an extension of limitation ordinance, thereby enabling this extension until further orders. So case is such, 15th March 2020 से आज तक there has been extension of limitation period, whichever is expiring within these periods, and to what all activities this limitation periods applies. We need to understand that it can apply to filing of any appeal to High Court, filing of any appeal to SESTEC under service tax laws also, filing of any appeal to Commissioner, filing of any appeal before the appellate authorities, filing of any appeal to the appellate for advanced ruling authorities. So all the procedural proceedings wherein we need to file an appeal to the judicial or quasi-judicial proceedings, in that case, we are entitled to have the benefit under the extension period as passed by Supreme Court. Now coming to the refund part, friends, whether refund is a proceedings, it is a quasi proceedings or not, again, that can be very well argued. And again, it can be very well said that the extension due to Supreme Court ordinance can also be made available to an application under section 54 with regard to refund. But this is something which will be subject to dispute by the governmental authorities in the nature of quasi or proceedings or not. So with this, we end our presentation for today, friends. Now over to you, Rajesh sir, and the office bearers to take it forward. Rajesh ji. सर अनम्यूट करें राजेश सर. Oh, thank you very much, Preetam ji and Tushar ji. Very wonderful deliberation covering all the topics, which that is very lengthy, and within a time frame you have covered very well. Now I request Rajiv Kohli ji, please present a formal vote of thanks, because there is no question. That is the beauty of the today's webinar. Sir, over to Rajiv ji. Thank you, Rajesh ji. Dear Preetam ji and Tushar ji made a very nice synergy and a very nice comprehensive deliberation in a very lucid matter, covering the entire impact, right from, you see, the entire GST is a makeshift arrangement as a shortcuts and a jugaad, the typical Indian jugaad, because so much learning processes are income. IT department for GST was not ready, so you had all, instead of 2, you had 2As and 3Bs, so things started. But all the things you are covered in a very comprehensive manner, 110 slides, and depending from your department notice under section 2A, 3B, then 1st July 7 to 8th October 19, then if the vendor has not filed his 3B, and if the GSTR 1 is filed, you can always take a declaration and an undertaking. That's a good point. Then post 9, 10, 19, this is 20% plus the amount shown. But then really is no fault, because the person who has bought the goods and paid to the vendor is not put in his things. Is basically a thing which is a compliance related issue which the department has to put on the seller, that he has to file the thing. So you have made that judgments clear from the Madras High Court. Then 180 days phase 2 pay, very nice deliberation. Then input on CSR is a legal compulsion and obligation, so we can take the input credits for that. Then transposition, when you do a IGST wrong or a CST wrong. And then the molds and dies covered, cross charges, ISD, related parties, distinct persons, liquidated damages, limited period. Thank you very much for a very comprehensive deliberations on such vast array of GST matters, which are covered very well, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for your time. Thank you very much. All are requested. भाई साहब कल हमें ज्वाइन कीजिएगा. कल हम कोविड-19 पे रख रहे हैं सब्जेक्ट. महाराजा अग्रसेन जी से हमने 2 डॉक्टर्स को बुलाया है. They will tell us कि how to prevent or remedies of COVID before, during and after the COVID. ब्लैक फंगस के बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग. So with this,
Thank you very much. Radhe Radhe, sir. Radhe Thank you, Radhe, sir. Radhe Radhe. Radhe Radhe, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you.